ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੈਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਲਮ ਦਾ ਤੇ ਫਹਿਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਾ, ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਣ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ देगा। इस बारे में मेरी तो सिंपल सी बात है, मेरी तो आजिज़ी है कि मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा इल्म नहीं मौजूद कि पहला इंसान या पहला जो लोगों का ग्रोह था वो किस तरह तकलीफ किया गया मेरे पास। बहुत खूब इनको पता है ना। देखो ये इन सबको पता है, आपको नहीं पता बनी वकास साहब, आपको नहीं पता, इनको पता है। नासिर साहब पता है भाई मुझे। जी हैप्पी साहब देखिए जी हैप्पी साहब, नासिर साहब मेरी गल सुनो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। बताएं ना, ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਇਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਲੱਭੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਦੱਬਰ ਔਰ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖ ਸ਼ੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ भगवान, क्योंकि ये तो भगवान है। भगवान आगे लेके चलते। मेरी तो सिंपल सी बात है, मेरी आजिज़ी है इसमें। भगवान हो के भी इन्हों भगवान का नहीं पता चलिया। देखो कैसी कमाल दी गल। चले नासिर साहब दलील रखें कि कैसे इंसान की खलकत हुई है, जरा बताएं। ਦੱਸੋ। देखिए ये ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ आदम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ नहीं, ਬਾਬੇ आदम ਤੋਂ मसला ਪਹਿਲਾਂ नहीं, बाबे आदम की भी खलकत अगर ये बता देंगे मसला ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ आदम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ। आदम कौन है पहले ते दसो, ये कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत किथे ने लिखे ने कुरान च किथे लिखे हजरत? रसूल नबी आए ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ लफ्ज़ जो आदम है उसकी खलकत का बता दें कि वो किस तरह खलकत हुई। आदम, पहले बात तो ये है कि आदम तो उसकी फाइनल स्टेज है यार। आप आदम को पहली स्टेज बना रहे हो, बड़े कमाल की बात है। अगर आपने आज तक यही नहीं पता चला कि आदम उसकी फाइनल स्टेज है, तो जिसको आप पहली स्टेज बना रहे हो। पहली स्टेज तो नास से स्टार्ट कर रहा है। ये आदम को रहने दें, आप पहले इंसान का बता दें या पहले इंसानों का ग्रोह बता दें किस तरह उसकी खलकत। हाँ ये जी नासिर भाई एक सवाल है कि आदम तो क्या आप कह रहे हैं कि आखिरी स्टेज है, तो पहले इंसान को अल्लाह ताला ने किसी और स्टेज में बनाया? अखी किसे होर लाइया सन, कान किसे होर लाए सी, हाथ किसे होर लाए सन, फिर हौली हौली अल्लाह ने समझ आया कि यार ये देख ठीक नहीं होने नूं हाथ उत्ते करिए, थोड़ा टंग थले करिए, अखा उत्ते करिए। जी मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿੰਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੈ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਇੰਜ ਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਤੀ है, तो स्टेजेस में ना तरबियत नहीं है, स्टेजेस है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तरबियत इस इंसान की होती है तो स्टेज बनता है ना जी। नहीं तरबियत नहीं होती, ये तरबियत का तल्लक नहीं है, ये एवोल्यूशन का तल्लक है इसका। और इसके साथ तदरीज का इसका एवोल्यूशन कहते हैं किसी चीज की ग्रेजुअली किसी चीज का बढ़ना। फिर एक इंग्लिश लफ्ज करके फिर इंग्लिश। अच्छा यार की तरह कहा मैं, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ
اے جڑے بھائی ارتقائی عمل. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو بات سننی ہے سمجھنی ہے تو پھر آپ نے سلو رہنا میرے ساتھ, مجھے بھائی جان آپ درمیان میں سمجھائیں گے تو ہم روکا ٹوکی سمجھیں نہیں گے, تجھے کرنی, سمجھاؤ ٹھیک نہیں ہے نا. تو بالکل نہیں سمجھا. اب وکاس آپ نے, آپ سوال کرو, اب آپ کا بنیادی سوال کیا ہے اس پوائنٹ پہ؟ سوال یہ ہے کہ پہلا انسان یا پہلے انسانوں کا گروہ جب کبھی بھی جہاں سے بھی اس کا سٹارٹ ہوا ہے, اس انسان کی خلقت کیسے ہوئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبات کے ذریعے ہوئی ہے. نبات تو جیسے یہ پودے اگتے ہیں ایسے انسان بھی ہوئے. جی 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 یہی ہے. صرف ایک اسٹیج تو نہیں بتائی, 2-3 اسٹیج اللہ تعالیٰ نے انہوں میرے نے خیال بتا دی ہے, دیکھیں انہوں نے بتا دی ہے, انہوں نے اس یہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ اینیمل کنگڈم میں کنورٹ کیا اسے میں نے, نہیں اور اینیمل کنگڈم سے پھر اسے ہیومن سپیشیز میں کنورٹ کیا. دیکھیں او پھر انگلش بول دیو ظالمو, ناشا پھر آپ کتنی باری دسیا نہیں سمجھ آمدی. غلط صاحب فرما رہے نے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا ہے وہ انسان نو پہلے پودے ہار اگایا ہے, اس تو بعد پھر انہوں جانور دی شکل وچ مبتلا کیتا ہے. علمو بس کری ہو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں دیکھیں آج جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ جنہوں نے اللہ. جانا ہے, ہاں انسان کو پیدا کر لو, پھر جنہوں نے پیدا کرنا میں نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا, آپ کی بات ٹھیک ہے, قرآن مجید میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگائے انسان, اس کا صرف اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو جیسے میں نے ان کا وہ کیا ہے, اسی طرح انسان کو بھی پیدا کیا ہے. بالکل بھی نہیں ہے یہ, آپ اس کا مطلب یہی لے لیں جو قرآن میں آپ بتا رہے ہو کہ پودوں کی طرح میں نے ان کو پیدا کیا, بالکل اس طرح نہیں ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, تسی مینوں دسنا ہے کہ میں تانوں دسنا ہے؟ پہلے یہ دسو نہیں, مینوں. آپ بھی بتائیں, ساڈے منہ دی زبان ہے نا, ساڈے ہوتے پھر تسی پھر مینوں پوچھن کیوں جو یہ زبان رائے اس وقت دیتی جاندی ہے جس لئے گل مکمل ہو جاندی ہے. کیا گل مکمل ہو گئی؟ اچھا سوری. اگر تو گل مکمل ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, رائے دو. اگر گل مکمل ہی نہیں ہوئی پھر رائے کس طرح بندی ہے؟ جی کیری آن ایک تو بات پوری کر دے, کوئی بھی ہنسیا تو میں لا دوں گے تلے. اس کتاب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے سنگولیرٹی سے ہوئی ہے, نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے اسے. یہ پتہ چل رہا ہے اس کا, یعنی کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ نفس واحدہ سے ہو رہی ہے. اب نفس واحدہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی سیل کریٹ ہوگا. ہمارا جو سٹرکچر ہے سارا, میرا, درختوں کا, پودوں کا, جانوروں کا, سب کا سٹرکچر جو ہے وہ سیل کے اوپر ہی ہے. اور وہ سیل جو ہے ہم میں کامنالٹی ہے, اور ایک ہی طرح کا سیل ہے ہم سب میں, ایک ہی راؤٹ ہے ہماری سب کی. تو اگر ایک ہی راؤٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پروسیس ہوا ہے, اور اگر یہ پروسیس ہوا ہے تو سنگل سے پروسیس ہوا ہے, ٹیون کی ڈبل کی طرف. اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کہا ہے کہ یہ میں نے کمال کیا ہے کہ پہلے اس کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جو نتھنگ نیس ہے, یعنی کہ نتھنگ نیس سے اسے سیل میں کنورٹ کیا میں نے, اور اس سیل سے پھر میں نے اسے بائی سیل یونی سیل کیا ہے, اور یونی سیل سے پھر اس کی تخلیق کا نظام میں نے شروع کر دیا, اور اس مقام پر آیا ہے جہاں پر وہ نطفے سے پھر پیدا کیا میں نے. اور یہ جو نطفے کا آغاز ہے یہ انسانیت کا آغاز ہے. تو اس سے پہلے جو پاسٹ کا جو نظام ہے وہ انسان کا, اس کا ایولیوشن کا نظام ہے. جزاک اللہ, بہت ایک منٹ ابھی تو سیکر صاحب آ گیا, میں نے بہت ان کو ریکویسٹیں کی ہیں تو یہ آئے ہیں. ایک منٹ پلیز میرے بھائیو, پلیز, ایک بہت اہم بات ہے. ملک صاحب عبداللہ تھلے لو, میں تھلے ہو جانا. ٹوٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, سیکر صاحب. ملک صاحب ہاں جی, میں نے تو سلام بھی کیا تھا. سوری میں نے سلام کیا تھا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سیکر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جزاک اللہ جزاک. ایک بات آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے, ایک منٹ سارے بھائی خاموش ہو جائیں پلیز. آپ نے جو اس دن موقف, کیا نام تھا ان کا, دلدار صاحب کا, کی نام سی, دیدات, ہاں, ان کی جو آپ نے موقف بیان کیا تھا ایک کتاب سے, تو ادھر بنی اسرائیل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے وہی موقف جو سے ہمارے سامنے پیش کیا تھا, سیم اسی طرح ان کے سامنے اپنا موقف وہی جو ہمارے سامنے اسی طرح دوبارہ بیان کرے. اور میں سب بھائیوں سے ریکویسٹ کر دوں, جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو
जो भाई बीच में बोलेगा नीचे उतार दूं, बिल्कुल। मलक साहब मैं इजाजत चाहता हूँ आप करेंगे, आप शप लगाएं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा ठीक है नासिर भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अगर नासिर साहब से बात करनी थी उनको करने दें। नहीं मैंने आप करें बात, मेरा ये टॉपिक नहीं है, जिसका ये टॉपिक है वो बात करें जरूर। अस्सलाम वालेकुम। तो जो भी भाई ऊपर बैठे हैं, जो भी उनको कोई एतराज हो या कोई उनसे बात करनी हो, जब उनकी बात मुकम्मल हो जाए, इत्मीनान से उनकी बात पूरी समझे, उसके बाद जो सवाल साहब है, जो बात करनी है आप बिल्कुल करें, लेकिन उसके बाद के दरमियान कोई बोलेगा तो मैं माफी चाहूंगा, पहले माफी मांग लूं, नीचे उतार दूंगा। जी आप बोले जी, बिट्टू सीकर साहब। जी हाँ जी मलिक साहब, वो मेरा भी बड़ा जहन है बनी साहिल साहब से बात करने का इस मामले पे। मैं लेकिन इस वक्त जो है ना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और फिर मैंने एक आगे काम पे बिज़ी हो जाऊँगा, तो मैं इस वक्त कुछ हवाले वाला दिखा नहीं सकता। दिखाई नहीं, जो हमें भी कोई चीज़ नहीं दिखाई थी, आपने सिर्फ बयान किया था। वो जो बयान किया था वो मैंने वो आराम से इत्मीनान से चले तो नहीं, बयान कर दो। तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं सुना सकूंगा, जो रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई थी ना वो मैं नहीं सुना नहीं चाहिए, जो उनकी बात है वो आप खुद अच्छा। अपनी बात करो। चले मैं कर लेता हूँ, जितनी बात हो सकती है फिर कर लेता हूँ, अब देखते हैं। लेकिन जो है ये बाद में भी सेशन में डिटेल में जो बात होगी ना, वो बाद में भी सेशन रखा जा सकता है। जी बनी साहिल साहब हमारे साथ है ना? तला साहब मैं तो आपके दिल में हूँ, आप कह रहे हैं बिल्कुल हो, लेकिन इत्थे इस वक्त आप इनकी बात गौर से सुनिएगा, जो पॉइंट ये देंगे गौर से सुनिएगा, और भी जो भाई इधर बैठे हुए हैं सबसे मेरा इल्तमास है। जी बहुत शुक्रिया जी, बोले तो सीकर साहब। हाँ जी बनी साहिल साहब, मुझे एक बात बताइएगा जी, आपने जो आपके जहन में क्या ये बात किसी ने आपको दिखाई है कि या आमिर अजीज साहब ने ये शो कराया है कि उनका कीदा ये है कि अहमद इदाद साहब का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया, और वो सूली पे नहीं चढ़ाया गया, वो सूली पे चढ़े ही नहीं, बल्कि उनकी जगह कोई और शख्स सूली पे चढ़ा है। ये आमिर नज़ीर साहब ने कहीं कोई वीडियो आपको सुनाई है कोई ऐसी? देखिए और शख्स का तो नहीं है उसने, लेकिन हज़रत ईसा के लिए कैटेगोरिकली जो है वो शेख अहमद इदाद साहब की वीडियो है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है ना, उन्हें इग्नोबल डेथ और क्रॉस की विकेटनेस दोनों से अल्लाह ने अपने पैगंबर को महफूज रखा है। नहीं, क्रॉस पे डेथ से महफूज रखा है, लेकिन क्या उन्होंने ये भी कहा है अहमद इदाद साहब ने, जो वीडियो आमिर अजीज साहब ने दिखाई है कि उनको क्रॉस पे लटकाया ही नहीं गया? जी बिल्कुल नहीं लटकाया, ये भी दिखाया उन्होंने? हाँ वो मतलब एक स्टेटमेंट है उनकी, वो स्टेटमेंट में उन्होंने इस तरह वो क्या स्टेटमेंट है? मैं स्टेटमेंट जो है आपको पढ़ के सुना दूँ। तो मैंने वो अपने पास रखी हुई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो वो स्टेटमेंट ऐसे है कि अहमद इदाद साहब रिप्लाई करते हैं, ये वीडियो के अल्फाज हैं, बट अल्लाह टुक हिम अप, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया टू हिमसेल्फ, अपनी तरफ। वही मुस्लिम बिलीव और हम मुसलमानों का मानना है, यकीन है, दैट गॉड के अल्लाह अलमाइटी बुलंद तारीफ वाला टुक हिम अप, उसने उसको ऊपर उठा लिया, सेव्ड हिम, और उसे महफूज कर लिया, फ्रॉम दैट इग्नोबल डेथ, जिल्लत अमेज मौत से, एंड नेकेडनेस ऑफ क्रॉस, और सलीब के नंगेपन से, बिकॉज द पीपल ऑन द क्रॉस वर एब्सोल्युटली नेकेड। चुनाचा जो लोग हैं जो क्रॉस पे सलीब पे होते हैं वो बिल्कुल नंगे होते हैं। दे डिडंट रिस्पेक्ट यू, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। यू टू पुट अ लिटल लॉइन क्लॉथ, कि वो जो शर्म का है उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा भी डाल दें। अराउंड द मैन, आदमी के गिर्द। द मैसेंजर ऑफ गॉड, जो अल्लाह का पैगंबर है।
یو سے دا سن آف گاڈ، اور تم کہتے ہو کہ جو خدا کا بیٹا ہے، نیکڈ وہ ننگا ہے، اینڈ بیئر دا ورلڈ، اور جو دنیا ہے وہ برداشت کرتی ہے اس کو، اینڈ یو نو، اور تم جانتے ہو، فلائز بزنگ، کہ مکھیاں اس کے اوپر بن بنا رہی ہیں، اراؤنڈ ہم، اس کے ارد گرد، نو نو، نہیں نہیں، گاڈ المائٹی ڈیڈنٹ الاؤ، نہیں نہیں، خدا جو بلند تعریف والا ہے اس نے نہیں یہ الاؤ کیا، نہیں اس کو اجازت دی، دیٹ ٹو ہیپن ٹو ہز سرونٹ، کہ وہ ہو اس کے نوکر کے ساتھ، اینڈ ٹک ہم اپ، اور اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اینڈ آئی سے، اور میں کہتا ہوں، ہی از کمنگ بیک ٹو جسٹ یو، وہ واپس آ رہے ہیں صرف تمہارے لیے، ہی از کمنگ بیک ٹو ڈو، وہ واپس آ رہے ہیں کرنے کی ضرورت، واٹ یو نو، جیسا کہ تم جانتے ہو، وہی مسلم بلیو، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اینڈ کلیم، اور ہم جو ہے اس پہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، دیٹ اسلام از دا کلمینیشن، دا فلفلمنٹ آف آل دا گاڈ ریویلیشن ٹو می آل ٹرو گائیڈنس آل، کہ اسلام جو ہے وہ خدا کی طرف سے وحی کی تکمیل ہے اور حقیقی رہنمائی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہاں جی جی، وہ دیکھیں، میں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ آگے جو ہے مین یہ تھا کہ ان کو کراس پہ وہ ان کو لٹکایا گیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ جو حوالہ ہے نا، ویسے مجھے اگر آپ یہ ٹیکسٹ میسج میں نیچے لکھ دیں تو میں بھی اس کو دیکھ لوں گا، لیکن اس میں یہ یعنی یہ جو بک کا نام ہے اور پیج نمبر جو ہے یہ اگر آپ لکھ دیں نیچے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے جس کو میں نے خود رائٹ کیا ہوا ہے، مطلب ٹیکسٹ کی فارم۔ اچھا، اگر یہ ویڈیو ہے نا تو یہ مجھے آپ کہیں اگر ویڈیو کا پھر لنک، ویڈیو کا نام بتا دیں گے کیسے یوٹیوب پہ سرچ کرنی ہے؟ تو یہ بھگوان صاحب نے نکالی تھی، تو مسئلہ نہیں، اگر آپ مجھے ان باکس کر دیں تو میں شاید آپ کو ان باکس کر دوں۔ ہاں ہاں، تو ان باکس میں مجھے ویڈیو کا وہ بھیج دیجیے گا کہ کیسے سرچ کرنی ہے، مسئلہ نہیں تو میں اپنی بات کی ہے اپنی میں نا ٹائم لائن پہ ہی اس کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اگر کسی ڈاؤن لوڈ کرنے کے دیکھے۔ ہاں جی، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں نا، اور جو کرسچنز وغیرہ اور جوز، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو نعوذ باللہ ان کو نیکڈ سولی پہ لٹکایا گیا تھا، یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ جو کرسچنز ہیں وہ بھی ان کو جو جس طرح وہ دکھاتے ہیں نا، ایون وہ جو اس میں بھی انہوں نے نیکڈ نہیں کسی نے ان کو ایز اے فگریٹیولی پریزنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ڈیتھ نہیں ہوئی، اور ڈیتھ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلیپ پہ لٹکایا گیا لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، تو یہاں پہ اس بات کی نفی ہو رہی ہے میرے حساب سے، لیکن میں اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے، دیکھیں جو اصل چیلنج تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا لیکن وہ سولی پہ فوت نہیں ہوئے۔ اب کسی اور جگہ کچھ عرصے بعد، 15 سال بعد، 10 سال بعد، کچھ عرصے بعد انہوں نے کوئی اور بات کر دی اپنا، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگوں کے پریشر میں آ کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر لوگ ڈیفرنٹ بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہم کوئی بھی نہیں بتا سکتا، ہم تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہی رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ دکھانا تھا کہ انہوں نے کہیں یہ کہا ہو یا مانے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا لیکن وہ فوت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ کسی اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے کچھ اور کہہ دیا ہو، ہم نے آپس میں ویڈیو کی کمپیریزن نہیں کرنے، ہم نے بس کسی جگہ سے یہ دکھانا ہے آپ کو کہ وہ فوت نہیں ہوئے اور سولی پہ نہیں لٹکایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، دکھائیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نہیں مسئلہ اچھا، اس میں میں نے نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مسئلہ نہیں، دکھائیں۔ ہاں جی، اس میں میں نے احمد دیدار صاحب کی 2 ریکارڈنگز جو ہے نا وہ لاسٹ ٹائم سنائی تھیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو یہ بات کلیئر ہے کہ ایک انہوں نے ٹرم کوائن کی تھی، انہوں نے خود ٹرم کوائن کی تھی، کروسیفکشن، CRUCIFICTION، کروسی ڈیش فکشن، صلیبی افسانہ،
सलीबी अफसाना। नहीं, उन्होंने ये टर्म डिफाइन किया है, स्पेलिंग्स हैं CRUCIFICTION। जी जी, ये इसका टर्म मतलब डिफाइन की है। सलीबी अफसाना। नहीं, उसका मतलब अहमद इदाद साहब की ज़बानी मैंने बताना है ना। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो की ज़बानी बताया था वो मैं पहुंचता हूँ आपको, उस पर पहुंचता हूँ। जो उन्होंने अफसाने वाला फिक्शन यूज़ किया था, लेकिन उसको यूज़ करके एक नया वर्ड बनाया है। सही है। और उसका उन्होंने पूरी मतलब भी बताया कि किसके लिए उन्होंने बनाया है। ठीक है, जो रेगुलर क्रूसिफिक्शन है ना, CRUCIFIXION, उसके लिए अहमद दीदार साहब ने क्लियरली ये बताया है कि इसका मतलब होता है सलीब पे लटके और सलीब पे बंदा फौत हो जाए। ये है जो हैंगिंग टिल डेथ। ठीक है, फिर उसके लिए उन्होंने डिक्शनरी से भी दिखाया कि डिक्शनरी में भी, जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी यही मतलब है, हैंगिंग टिल डेथ, क्रूसिफिक्शन का। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एक ये जो चीज़ है कि जब किसी को हैंग किया जाए उस पे सूली पे, और वो सूली पे फौत ना हो, इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। फिर उन्होंने उसकी एग्जांपल्स भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ फिलीपींस में लोग हैं, ये मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं बुक की बात नहीं कर रहा, ये इनकी डिबेट थी, इनकी और माइकल डगलस की। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अक्सर ये लोग क्रिश्चियंस ये भी करते हैं कि अब वो जो है सूली पे लटकते हैं खुद एज ए रिचुअल के तौर पे। फिलीपींस में कुछ हैं लोग, पढ़ा है मैंने, उन्होंने अपनी किताब में भी बताया है। हाँ, किताब में भी लिखा है, लेकिन मैं अभी वीडियो को बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, सूली पे लटकते हैं, 20 मिनट लटके रहते हैं, सूली से जिंदा उतर आते हैं, आके सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो इंसान जिंदा होता है। एंड दैट्स नॉट क्रूसिफिक्शन, जो रेगुलर क्रूसिफिक्शन है, CRUCIFIXION, दैट्स नॉट दैट। ठीक है, ये क्या है? उन्होंने कहा इसके लिए कोई टर्म नहीं है इंग्लिश में कि बंदा हैंग हो लेकिन स्लीप पे मरे ना। इसके लिए मैं एक टर्म कॉइन करता हूँ, और वो है जो फिक्शन वाला, जो अफसाने वाला वर्ड है, उसको यूज़ करके मैं क्रूसिफिक्शन वर्ड है जो मैं कॉइन करता हूँ, उसकी स्पेलिंग है CRUCIFICTION, जिसको मैं कहूँगा CT वाला क्रूसिफिक्शन। ये मैं टर्म कॉइन करता हूँ। मदीदा साहब ने कहा ये मैं टर्म कॉइन करता हूँ, किसके लिए? कि सूली पे लटका लेकिन सूली पे बंदा फौत नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, सही है। ये कहने के बाद अच्छा, वीडियो में ये इन्होंने ये सारा क्रूसिफिक्शन है। अब जब बुक भी जो आप देखेंगे ना, बुक में भी उन्होंने क्लियरली जगह जगह उन्होंने यही कहा है कि FICTION को इसी तरह एक्सप्लेन किया है, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर लगाई। तस्वीर में एक बंदा था जो लटका हुआ था सलीब के साथ, और नीचे ना उसमें डिस्क्रिप्शन न्यूज़ था, वो न्यूज़ की थी, कोई कटिंग थी। उस न्यूज़ की कटिंग में क्या था कि एक बंदा, उसका नाम लिखा हुआ था, वो सूली पे लटका, वो लटका रहा और फिर वो उतर आया और जिंदा था। ठीक है, जिंदा उतर आया, एज ए रिचुअल उसने किया। उसके ऊपर इन्होंने अपना एक नोट लिखा हुआ था अहमद दीदार साहब ने कि ये क्या है, ये क्रूसिफिक्शन नहीं है, एक्स वाली क्रूसिफिक्शन नहीं है, ये CT वाली क्रूसिफिक्शन है। ठीक है, उन्होंने फिगर से भी समझाया और साथ ये भी बताया कि ये मैं टर्म कॉइन कर रहा हूं, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये बात आपको ये क्लियर हो गई? ये मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा, जब हाँ, उन्होंने इसका अब ये जब क्लियर हो गया कि जो CT वाली, C और T वाली क्रूसिफिक्शन मैं कह रहा हूं जिसे, वो है कि बंदा स्लीप पे लटका लेकिन स्लीप पे फौत नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक वीडियो में उनसे जब वीडियो में बात कर रहे थे, ये इसी से किसी क्रिश्चियन को मुनाजरा हो रहा था, तो उसमें ना उन्होंने कुरान की आयत एक्सप्लेन की कि कुरान क्या कहता है। ठीक है, जवाब वो क्रिश्चियंस को ही दे रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि कुरान क्या कहता है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक आयत पेश की सूरह निसा की, जिसमें यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना वो कत्ल कर सके, ना वो सलीब दे सके, बल्कि मामला शुबे में पड़ गया। ठीक है, ये कह के फिर उन्होंने कहा कि वो शुबे में, उसको एक्सप्लेन करने लग पड़ेगा फिर कैसे शुबे में पड़ गया। ठीक है, सही है। उन्होंने कहा कि ये जो क्रिश्चियंस जो कि जिस क्रूसिफिक्शन, एक्स वाला क्रूसिफिक्शन है ना, इनका ये है कि वो लटके और उस पे फौत हो गए। ये एक्स वाला क्रूसिफिक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है,
लेकिन हुआ क्या, हम कहते हैं, उन्होंने कहा वी से कि सीटी वाली क्रूसिफिक्शन हुई है। हम कहते हैं कुरान की आयत एक्सप्लेन करके उन्होंने शुबे की बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि क्या हुआ, सीटी वाली क्रूसिफिक्शन हुई है। और उन्होंने बकायदा उस वीडियो में, वो वीडियो है उसमें बकायदा उन्होंने वो सीटी वाला वर्ड सामने लिखा हुआ था, उसको दिखाया कि ये है, उन्होंने पूरे स्पेल करके CRUCIFICTION वाली क्रूसिफिक्शन हुई है, ठीक है। और जिसको उन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया था कि ये सीटी वाली क्रूसिफिक्शन क्या है, कि बंदा सूली पे लटका और सूली पे फौत नहीं हुआ, ठीक है। ये बात उन्होंने वीडियो में कही। और हाँ जी, आयत पहले आयत प्रेजेंट की है। अच्छा। आयत प्रेजेंट करके, ये मैंने वीडियो लास्ट टाइम सुनाई थी, उन्होंने आयत प्रेजेंट करते हुए बताया कि क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन वाला ये काम है उसमें तो है फौत होना, ये नहीं हुआ। सीटी वाली, हम कहते हैं कि सीटी वाली, वी से व्हाट हैपेंड वाज क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, दैट्स व्हाट हैपेंड, ठीक है, दैट्स व्हाट वी से, ओके। ये उन्होंने कहा और फिर आगे वो चल पड़े और आगे फिर दूसरी और बात करने लग पड़े कि ये जो है, और मुसलमानों का भी यही जहन है कि ये जो है ये एक किस्म का ये चीज़ नहीं हुई, एक अफसाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बाकायदा स्टेटमेंट किया है कि व्हाट वी से, कि फिर हुआ क्या, वो ये सीटी वाली क्रूसिफिक्शन हुई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, इजाजत नहीं ये जो अब मैं वीडियो से और सारी चीज़ मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। मैं इस वक्त मुझे मौका दीजिएगा, आप बात कंप्लीट कर लें अपनी। नहीं, मैंने इससे बनी इस्राइल साहब से बात करनी है, मैंने और किसी से इस वक्त बात नहीं करनी। आपसे नहीं करनी, मैंने भी मुमताज साहब से करनी थी। अच्छा, बनी इसराइल बनी कहानी करने की तस्वीर दे। यार ये म्यूट कर लें, किसका शोर आ रहा है डबल। यार ये पीर साहब को नीचे किसने उतारा है? रुक जाए यार, अभी बात एक चल रही है, पता नहीं किसने उतारा नीचे, मुझे नहीं पता। अच्छा बनी साइद साहब, आपका कोई सवाल है? मैंने अब जो है ना, मैंने अब जाना है आगे। नहीं, आप वो जो वीडियो आप कह रहे हैं ना, वो वीडियो आप जब मुझे सुनवाएंगे तो फिर मैं जरा देखूंगा ना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम अब आप आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। मैं फिर वो वीडियो वगैरह ला के वो भी दिखा दूंगा आपको। और जो सीकर साहब, जो कहानी गढ़ी है उसका तो जवाब देते हैं, जो कहानी गढ़ी है आपने। हाँ जी, कौन सी वाली? मैंने कहा ये जो कहानी गढ़ी है, कितना आपने मेहनत की इस कहानी को गढ़ने में, तो उसका जवाब तो देते जाए। आप कितने आपने यार, आपको झूठ बोलते हुए अल्लाह का डर नहीं लगता जो सीकर साहब? अच्छा वैसे देखें शाह जी, इस तरह ना इल्ज़ामबाजी ना शुरू कर दिया करें, थोड़ा सा इखलाक के दायरे में इंसानों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। चल एक जुमला दिखा दे, एक जुमला अभी आपने जो बोला, मुझे सवाल कर ले, और मैंने वैसे भी आगे जाना है, सवाल जल्दी कर ले। एक जुमला कर दे। आपने देखे कहा कितना बड़ा कि जनाब अहमद दिदास साहब कहते हैं कि हम मुसलमान ये और तुम ये क्रूसिफिक्शन, और ये जो बनी इसराइल बार बार आपको बीच में डैश का वो आपने डैश उनका जो है ना उड़ा दिया डैश का। नहीं, अभी वो सिर्फ असल में सही है सर, वो असल में अभी सिर्फ जो है वो जुबानी कलामी बता रहे थे। वो कह रहे थे मैं ड्राइव पे हूँ, तो बाकायदा जब वीडियो पेश करेंगे तो उसमें फिर उनके अपने अल्फाज कुछ भी नहीं होंगे, जो अहमद दिदास साहब बोलेंगे हम तो वही उसी पे देखेंगे ना। नहीं अपना बनी इसराइल साहब बाकी बातें, बनी इसराइल साहब बाकी बातें तो होती रहेंगी। मकसद ये है, अभी ये जो वर्ड है ना, वर्ड इसका तो डिसीजन कर लें। क्या क्रूसी के बाद भी नहीं, मतलब ये डैश उड़ा रहे हैं ना, देखें मैं सीकर साहब बीच में डैश उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये जो लफ्ज है ना क्रूसी, इसका मतलब है सलीब, और फिक्शन का मतलब है अफसाना। हाँ बिल्कुल सही है। सलीबी अफसाने पे उन्होंने पूरी किताब अपनी लिखी है। नहीं, बीच में डैश है कि नहीं, ये बताएं आप, डैश है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये देखें, इन्होंने एक मरतबा में डैश बीच में नहीं, और लफ्ज पूरा पढ़ रहे हैं डैश। इनको चाहिए था क्रूसी डैश फिक्शन पढ़ते। मुझे समझ है असल में एक मिनट बनी साहिब साहब, एक मैं बात आपको बता दूं, जो मैंने आपको ये बताया है ना, CRUCIFICTION, एग्जैक्टली अहमद दिदास साहब ने कुरान की आयत पेश करके उन्होंने कहा कि जो क्या ये शुबे में पड़ गया, क्या हुआ वी से
کہ CRUCIFICTION اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ دکھایا بھی کہ اور اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی اسی کا اسپیل کیا جو مجھے یاد ہے میں نے ایگزیکٹلی اسی کا ہی بتایا. انہوں نے یاد نہیں نہ ہوگا بھول بھی گیا ہوگا آپ کو. اچھا میں ایک بات میں نے کرنی ہے. سیکر صاحب آپ کی بات آ گئی, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دی ہے, میں وقاص صاحب سے بات کرنی ہے. انہوں نے ڈیش نہیں شو کی. ٹھیک ہے سیکر صاحب مائک بند کریں یار, مائک بند کر لیں. سن لیے بات آپ کی اتنی تفصیل سے سنیے. جواب دیتے جائیں. نہیں میرا ان کو بھی خاموش کہنا شاہد صاحب کو. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے جو صاحب ڈیش کرے یا نا ڈیش اگر انہوں نے وہ ورڈ جو ہے وہ ایک ورڈ خود کوائن کیا ہے. میں نے مسئلہ نہیں ہے صاحب, مجھے علم ہے ڈیش ڈال کے بھی شاہ صاحب, ڈیش ڈال کے بھی صلیبی افسانہ ہے, ڈیش نہ ڈال کے بھی صلیبی افسانہ ہے. تو ڈیش کا کوئی اچھا وہ وقاص صاحب میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ دیکھیں ٹروتھ سیکر صاحب کی آپ نے بات سنی ہے, میرے خیال سے غور سے ہی آپ سن رہے تھے, میں بھی غور سے سن رہا تھا. یہ ان لوگوں کا کام ہی بن گیا ہے ڈنڈی مارنا اور غلط بیانی کرنا. آپ کو بھی پتا ہے اور یہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں بھی یہ جو بات بیان کر رہے ہیں 1 منٹ کے لیے منوان ایسے ہی مان لیں کہ وہ سارا کچھ ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کرسچنز کے لٹریچر سے جو ثابت ہوتا ہے وہ کروسیفکشن یعنی افسانے والی کروسیفکشن ثابت ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ. پھر وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے وہ کہتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس از کروسیفکشن, یعنی یہ ایک افسانہ ہے, یہ ایک کہانی ہے, صلیبی افسانہ ہے. یعنی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے اور آپ کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہے, صلیبی افسانہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آگے جا کے پروفیسر صاحب کہتے ہیں صاحب میوٹ کر لیں, صاحب کو میوٹ کر دو یار, میوٹ کر دو, میوٹ آپ ہی کر دیں میوٹ میرے خیال سے. میوٹ کر دو کوئی مت. اچھا وقاص صاحب آگے جا کے یہ کیا کہہ رہے تھے ٹروتھ سیکر صاحب, کہتے ہیں اس سے آگے پھر وہ اگلی بات بیان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب افسانہ ہے وغیرہ 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 وغیرہ. وہ وغیرہ وغیرہ جلدی کر گئے ہیں, یعنی یہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے والی بات تو وہ کرسچنز کے لٹریچر سے کرسچنز کو بتا رہے ہیں اور اس سے آگے پھر کہتے ہیں کہ لیکن ہم مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب افسانہ ہے. تو ہم مسلمانوں کی اور ان کی اسٹیٹمنٹ تو وہ ہوئی جہاں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کہانی افسانہ ہے. اس سے پہلے والی بات یہ جو ساری بیان کی ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ کرسچنز کے لٹریچر سے کرسچنز کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. ایک منٹ میرے پاس ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے جہاں پہ وہ کروسیفکشن کے میننگز بتا رہے ہیں خود. وہ کروسیفکشن کے میننگز بتا رہے ہیں خود, افسانہ صرف فکشن کے نہیں, کروسی فکشن کے فیری ٹیل وہ خود بتا رہے ہیں. وہ آپ کی کہانی ساری ختم ہو گئی ہے ٹروتھ سیکر صاحب, اور زور لگائیں. اچھا میں جواب دے دوں. دیکھیں مین چیز یہ ہے, بس میں آخری بات کرنا 10 سیکنڈ رسول صاحب آپ خاموش بھی ہو جائیں, آپ خاموش ہو جائیں پلیز. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ان کی جو ہے باتیں نہیں سننی, ہم نے تو احمد دیدار صاحب کی باتیں سننی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وہ دکھانی ہے, میں نے اس کے حساب سے جو مجھے سامنے میں نے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ چاہے ڈیش ہو چاہے ڈیش نہ ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ورڈ کوائن کیا تھا, 2 ورڈ کو ملا کے ایک ورڈ بنایا ہے جسے کہتے ہیں کروسی فکشن, CT والی کروسی فکشن. یہ انہوں نے ورڈ بنایا ہے اور اس کو بار بار ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے اس ورڈ کی بنانے کی وجہ بھی بتائی کہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انگلش میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے کہ بندہ سولی پہ لٹکے اور سولی پہ فوت نہ ہو. پھر اس کے لیے انہوں نے ایگزامپل پہ ایگزامپل دی کہ یہ پھر کیا ہے کہ جو بندہ لٹکا اور فوت نہیں ہوا, اس کی کئی ایگزامپل بھی دیں. اس کی انہوں نے نیوز کے تراشے بھی لگائے اور سب کو آ کے کہا کہ میں اس کے لیے ورڈ بناتا ہوں. اور وہ ورڈ کیا ہے, جو فکشن والا افسانے والا فکشن ہے اس کو یوز کر کے میں ایک ورڈ بناتا ہوں, CRUCIFICTION یا CRUCI-FICTION. اس کا مطلب انہوں نے بار بار ایکسپلین کیا کہ کس کے لیے ورڈ بنایا انہوں نے, کہ سولی پہ لٹکا لیکن سولی پہ فوت نہیں ہوا.
ठीक है। ये अब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग की ये जो है ये तो दो वर्ड मिला के आप एक वर्ड बनाते हैं, उससे जो मतलब बनता है वो जो बताने वाला है ये उन्होंने कहा है प्रिंसिपल साहब स्लीप पे मलक साहब अगर आपकी इजाजत हो तो कोई 20 सेकंड मैं यही तो एक मिनट मैं की बात मुकम्मल हो जाए प्लीज। हाँ जी, मैंने सबसे पहली मैं तो बुक से भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वीडियोस भी मैं दिखा सकता हूँ जिसमें ये सारी बात वो कर रहे हैं कि उन्होंने के जो इंग्लिश में ये जो होता क्या है कि बंदा लटका और फौत नहीं हुआ, ये जो चीज़ है इसके लिए कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए मैं वर्ड बनाता हूँ और वो वर्ड है CRUCIFICTION, ठीक है। ये वर्ड मैं बनाता हूँ। किसके लिए उन्होंने वर्ड बनाया, ये सवाल है। यही तो उन्होंने खुद ही जवाब दिया। उन्होंने खुद सबसे पहले कहा कि ये जो है इंग्लिश में इसके लिए वर्ड ही नहीं है। किसके लिए? किसके लिए उन्होंने सूली पे लटके साहब, लेकिन अभी सवाल ये है कि वर्ड बनाया उन्होंने। सवाल ये है कि ये वर्ड किस लिए बनाया है, यही सवाल है ना। डॉक्टर साहब उन्होंने खुद बताया भाई, आपने नहीं बताना, एक मिनट आपका अपना ज़हन ही संभाल करना। ये जो वर्ड है क्रूसी डैश फिक्शन, ये उन्होंने क्रिश्चियंस को प्रूव करने के लिए ये वर्ड कॉइन किया है या उनका अपना कीदा था? देखें, मैंने फिर आपको बताया है, वन थिंग एट ए टाइम सर। सबसे पहले ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ के बंदा सूली पे लटके और सूली पे फौत ना हो, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। मैं इसके लिए वर्ड बनाता हूँ, वो है CRUCIFICTION या उसको CRUCI-FICTION। ये वर्ड मैं बनाता हूँ। ये बात समझ आ गई। बस ये जब समझ आ गई ना तो फिर इस पे बहस ना करें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये सवाल किया है कि ये किसके लिए कॉइन उन्होंने एक जो वर्ड कॉइन किया है ये किसके लिए किया? अब क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि ये जब क्लियर हो गया कि ये जो वर्ड है इसका मतलब है सूली पे लटकना और सूली पे फौत ना होना, जब ये मसला हल हो गया तो नेक्स्ट हमने सिर्फ ये दिखाना है कि इन्होंने ये कुरान की आयत पेश करके उन्होंने कहा कि हम समझते हैं, ये जो कुरान की आयत के मुताबिक मामले में शुबा हो गया। क्या हुआ कि ये हम समझते हैं कि CRUCIFICTION वाला जो वर्ड उन्होंने कायम किया था, वो कहते हैं हम समझते हैं ये हुआ है। हाँ, ये वाली वीडियो दिखा दीजिए, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, ये मैं दोनों वीडियो आपको दिखा दूंगा। ये एक वो जो CRUCIFICTION जहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है, और ये वीडियो भी, दोनों आपको दिखा दूंगा। फिर तीसरी वीडियो एक और है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, वो तीसरी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरी कि एक कोई और बंदे को चढ़ा दिया गया था, उन्होंने कहा कि कुरान ये बात नहीं कहता, कुरान में ये बात नहीं है, ये लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने ये बातें बना ली हैं। ये लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों का, सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे कहा है जी। ये भी मैं तो फिर देख वीडियो मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। अभी आप वीडियो मुझे ये मैं तीनों हाँ जी वीडियो मुझे दिखाएंगे। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये जो आपके नीचे बैठे हुए हैं ना, मुस्लिम सारे मुझे पता है, देखें मुस्लिम सारे बिलीव करते हैं कि उस जगह पे हजरत ईसा की जगह किसी और को जो है वो सूली दी गई है। अगर शेख अहमद दीदार साहब ने ऐसी कोई बात की है फिर तो डाउट बात होगी। मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, ये जो बात की जाती है, कुरान बिल्कुल ये बात नहीं करता। ये लोगों ने अगर ये बातें बना ली हैं तो ये इसका वो उनका मसला है। कुरान ये बात नहीं करता, ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है। ये तो सारे मुसलमानों का अकीदा है कि उनकी जगह पे दूसरे जो है किसी और बंदे को जो है वो सूली पे चढ़ाया गया है। जी बिल्कुल। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर टेरिंग बैठे हुए इधर, अभी शाह जी आए थे, इसी तरह हमें नजीर है, इसलिए तो ये मैंने इनसे नहीं मैं एक बात आने लगा था। मैं इनसे जब पूछते हैं ना कि अपना कीदा बताओ, ये इसी वजह से घबरा के नहीं बताते कि उनको पता है कि इन्होंने डिनाई किया हुआ है, इसी वजह से अपना पूरा कीदा नहीं बताते। हमारे सामने आके से पूछे ना कि समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। अभी आप मुझे वीडियो जब दिखाएंगे ना कि ये मैं वीडियो बिल्कुल कह रहे हैं, आप ऐसा करें ये वीडियो अगर मुझे आप इनबॉक्स कर दें, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। हाँ, मुझे इनबॉक्स कर दे तो मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ।
हाँ अभी मैं इनबॉक्स नहीं कर सकता, लेकिन अभी ठहर के मैं कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह दोबारा भी बात होगी मलिक वान साहब की जब मेरे पास। हाँ जी ठीक है जी, मैं फिर चाहता हूँ, मैं वैसे मौजूद रहूँगा लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर सकता जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अब जो सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर डेरिंग साहब कह रहे थे, मैं बोलूँ। शुक्र है जी टाइम दिया आपने। साहब इसने ये जो कहानी सुनाई है ना, पहली बात तो ये जो कर रहा है ना बार बार, ये अपना अकीदा नहीं बताते, ये अपना अकीदा नहीं बताते, वो हमारी अभी ये बहस नहीं है हमारे अकीदे की, ये इस बहस को ख़त्म कर लें, हमसे 1000 बार हमारा अकीदा पूछें। दूसरी बात ये है कि ये सब्सटीट्यूशन वाला जो मामला है ये भी ज़ेर बहस नहीं है, ये भी एक अलग टॉपिक है। पहले जो असल बात चल रही है, असल टॉपिक है, उसको क्लियर कर रहे हैं, फिर ये सब्सटीट्यूशन वाला आया या मुसलमानों का अकीदा है या नहीं है, ये हमसे पूछ लीजिएगा बाद में। इन दोनों चीज़ों का भी साइड पे रखें, गड़बड़ ना करें ये सारे मामले को। नहीं गड़बड़ नहीं, इसमें बात ऐसे है डॉक्टर डेरिंग साहब, एक बात को समझें, तो जब अकीदा बयान होता है ना, तो आधा अकीदा कभी भी बयान नहीं होता। अकीदा पूरा जो मुसलमानों का अकीदा जो मुझे अभी तक पता है, कि लोग हर मुसलमान यही समझता है कि हजरत ईसा को ना तो कत्ल किया गया और ना ही सलीब की गई, बल्कि उनकी जगह पे उनकी शबी जो है उसको उसके साथ नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। ये शबी वाली जो बात है ना, ये इसराइली ये अंजील बरनबास में ये स्टोरी लिखी हुई है, और ये किसी भी मुसलमान का कतन अकीदा नहीं। अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया सलीब दिए जाने से पहले, ये अकीदा है मुसलमानों का। तो ये जो है सब्सटीट्यूशन वाला मामला, ये चूँकि अंजील बरनबास में लिखा हुआ, ना ये कुरान में है ना ये हदीस में है, तो अक्सर कई ऐसे मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने जब ये सलीब का वाक़या बयान करते हैं तो इसको भी कोट करते हैं कि इंजील बरनबास में ये लिखा हुआ। खुद सुना है मैंने शाह साहब से ये बात खुद सुनी है कि ये वलाकिन शुब्बिहा लहुम, तो उसमें कहते हैं वो उनके लिए शबी आ गई उसकी जगह पे। हाँ, तो ये उसमें ये देखें, ये मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है, वो उसके लिए ये जो बात बयान करते हैं ना कि किसी की शबी आ गई, ये अंजील बरनबास में जो लिखा वो उसको कोट करते हैं, ये बतौर अकीदा मुसलमानों में राज नहीं। एक बात तो नहीं यहाँ पे वकास भाई फिर एक पॉइंट है इनका डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, मुझे बात कंप्लीट करने दें, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। मुझे असल बात जो थी उसको वो पॉइंट पीछे रह जाएगा। असल मैं ये कहना चाहता था, अभी इस टॉपिक को आप अलग रखें, इस पे आप डिटेल से गुफ्तगू कर लीजिएगा, लेकिन चूंकि वो उसके साथ गड़बड़ ना हो तो इसको अभी अलहदा रखें। असल में ये जो क्रूसीफिक्शन वाली बात कर रहे थे, ये इसमें आप 3 पॉइंट्स जो है वो ज़हन में रखें। नंबर 1 कि आया वो जो वर्ड उन्होंने नया एक बनाया है, वो वर्ड उन्होंने बतौर अपना अकीदा डिस्क्राइब करने के लिए बनाया है या क्रिश्चियंस के लिए वो बनाया है, नंबर 1। नंबर 2 आप ये देखें कि उसमें वो क्रिश्चियंस को उनकी किताबों से ये प्रूव कर रहे हैं कि आपकी किताबों से ये CTION वाली क्रूसीफिक्शन साबित होती है, या वो ये अपने अकीदे के तौर पे उनको बता रहे हैं कि जी असल में रियल में इन हकीकत मुसलमानों का बिलीव है कि ये वाली क्रूसीफिक्शन हुई है वहाँ पे। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, मेन चीज़ ये है कि उन्होंने ये जो नाम दिया है इसको उन्होंने खुद बताया भी है कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने ये नाम इसलिए नहीं दिया कि ये जो सिचुएशन है, अगर इन्होंने ये बात जो ट्रूथ सीकर साहब ने की, अगर इनकी बात ये ऐसे ही है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने ये नाम इसलिए नहीं दिया कि चूंकि इस सिचुएशन के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है तो मैं एक नया वर्ड बना दूं, नहीं, बल्कि जैसे आप किसी को तंज नहीं करते, उन्होंने ये फिक्शन वाली यानी कि मुंह की बात की, ये एक मिनट ये तंजिया उन्होंने लफ्ज किया है, तंजिया के जैसे ये फिक्शन अफसाना कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर आपकी कुतुब से आपका बिलीव ये है कि उनको क्रॉस पे मौत आ गई, लेकिन आपकी अगर कुतुब ये साबित करती हैं कि नहीं वो मौत नहीं आई बल्कि वो जिंदा थे, तो फिर आपके पास चूंकि सिचुएशन के लिए वर्ड नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये एक अफसाना है, ये एक कहानी है, दिस इज क्रूसीफिक्शन, CTION वाली क्रूसीफिक्शन। तो ये वो बतौर एक सिचुएशन को एक नाम देने के तौर पे वो नाम नहीं दिया, बल्कि तंज करने के तौर पे दिया। अब दूसरी जगह, अब आपको बात समझ आ जाएगी। दूसरी उनकी मेरे पास स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो क्रूसीफिक्शन XION और CTION वाली है, इसका फ़र्क क्या है? XION वाली वो कहते हैं को हैंग टिल डेथ, और CTION वाली वो कहते हैं फेरी टेल। बात क्लियर हो गई। जब उन्होंने खुद कह दिया कि क्रूसीफिक्शन CTION वाली का मतलब है फेरी टेल, तो बात तो खत्म होगी कि वो उनको कह रहे हैं कि भाई ये कहानी है। ये चीज़ है, ये पॉइंट 3 है। अब नून साहब आप बात कर सकते हैं, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका।
चले जी, बड़ी मेहरबानी। सीकर भाई ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, मलक साहब ने काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम दे दिया था। चलें, बड़ी मेहरबानी, अभी टाइम मिल गया। सो डॉक्टर शेख अहमदी दाद को अगर समझना है तो उनकी आप स्टडी कीजिए, उनकी पहले की जो बयान है उनको भी गौर से सुनिए, तो आप पे बहुत क्लियर हो जाएगा कि उनकी जो नेचर है बात करने की, उसका स्टैंस जो उनका है वो क्या है। वो जब बात कर रहे थे, मैंने वीडियो 2-4 दफ़ा देखी है, मैंने सुनी है, वो सरासर तंज कर रहे थे कि मसीहियों ने जो भी अकायद है, क्योंकि वो मसीहत के बहुत बड़े दुश्मन थे, हमें अच्छे को नहीं लगते हैं। वो 12 बार कह दिया है, हमारे अकायद को उन्होंने एक तंज बना के इसको ये लफ्ज़ लगाया था कि क्रूसीफिक्शन जो एक्स के साथ है ये वो नहीं है, ये कहानियाँ आप लोगों ने घड़ी हुई हैं। बाकी सीकर भाई ने एक और बात कर दी जी, फिलीपींस में जो है वो लोग क्या कर रहे हैं उधर, ये जी वो ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आके फिर सिगरेटें पीने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल जो है उसके वाक़या सलीब का जो है उसके साथ मंसूब करना सरासर हमाकत है। इसको उन्होंने दी है, ये तो हजरत नून भाई ने उनकी किताब में लिखा हुआ है, ये मैं कैसे ना कहूँ कि उन्होंने ये सरासर जो है हमाकत है। अगर किसी ने भी कर ली है कि जी वो ऐसे करते हैं फिलीपींस में, आप कह सकते हैं शेख साहब को मैं कोई हाँ जी उनको भी ये कह सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये जो है वो तो अल्लाह के तौर पे लोग कर रहे हैं, और मेरी नज़र में वो भी बेवकूफ़ी है, कोई अच्छा काम नहीं है। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, वो भी एक्चुअल नजदीक हमाकत है, तो ऐसी बात जी नो प्रॉब्लम, दैट्स योर फेथ, यू नो, उसमें कोई मसला नहीं है। बात नहीं हम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में अहमद दिदात साहब की जो होल स्टेटमेंट है वो क्या बात कहती है। हमने सिर्फ ये होल स्टेटमेंट यही कह रही है कि वो मसीहत पे तंज कर रहे हैं। मैंने देखी नहीं है वीडियो में, कैसे कह दूं, मैंने वो 3 वीडियो को बोल रहे हैं, वो चले आप देखिएगा दोबारा से, आपको समझ लग जाएगी कि वो सरासर उनका बयान सिर्फ एक तंजिया है। वो तंज कर रहे हैं कि ये क्रूसीफिक्शन एक्स वाली नहीं है, एवं कहानियां कर रहे हो, ये तो किसी कहानी बनाई। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर इजाजत दें तला साहब। जी देखें, बात ये है, आप उनके जो ये बात ना करें उनके उसके ऊपर कि वो उनके ऊपर तंज कर रहे हैं, वो उनकी बातों से पता चल जाएगा। और बातों से जो मुझे पता चल रहा है, जो सामने आ रही है बात, जो ईसाई मसीहों के सामने ये उन्होंने बात रखी है, उनका अकीदे को उन्होंने ये तंज किया है कि जो मीनिंग आप ले रहे हो कि उनको सलीब पर मौत आई है, ये नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अपना अकीदा तंज में तो कोई नहीं बताता, उन्होंने अपनी तरफ से एक अल्फाज बनाया, और अल्फाज की वो ये बनाया जो उनके अकीदों के खिलाफ है। आप कह रहे हो नहीं उन्होंने ये तंज पर बनाया ये अल्फाज। बिल्कुल ऐसे ही है तला साहब, बिल्कुल। और मैं भी तला साहब यही कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो से, जिस तरह उनकी वीडियो हमने भी वो वाली यहाँ पर सुनाई गई है, तो हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो तंज कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे अंदाजा हो रहा है कि वो तंज कर रहे हैं? हाँ, ये बात, अगर आप अल्फाज का चुनाव जाते इसलिए कि उन्होंने खुद क्रूसीफिक्शन CTION वाले का मीनिंग बताया है फेरी टेल, तो इसके बाद तो मजीद गुंजाइश नहीं रहती। मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा मुसम्मम अकीदा है कि खुदाबंद यीशु मसीह को सूली दिया गया और उन्होंने जान दी है। अब मेरे जो कोई भी मोतरज आके उस पर बात करेगा और वो एक लफ्ज़ बना देगा फिक्शन उसके साथ लगा के, जो हमारे नज़दीक एक हकीकत है उसके साथ फिक्शन लगाएगा, तो फिक्शन दैट मीन्स कि हमारे अकायद जो है ही इज़ मेकिंग फन ऑफ दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स प्रीटी क्लियर। कर रहे हैं, नहीं तो उनको ये नफ्स की ज़रूरत ही ना पड़ती भाईजान, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कोई अंग्रेजी दान नहीं थे कि वो नया लफ्ज़ ईजाद कर रहे हैं, वो तो एक तंज कर रहे हैं सर। वो बात करें जो वो कर रहे हैं सर, अपनी बातें ना करें। उन्होंने बकायदा कहा है कि मैं ये वर्ड कॉइन कर रहा हूँ, किसके लिए? जो ये वाक़यात हैं कि सूली पे लटके और बंदा फौत ना हो, उन्होंने खुद कहा है कि ये इसके लिए मैं वर्ड बना रहा हूँ। और जो 2 वर्ड को मिला के जो वर्ड बनाया है, उसका मतलब वही लेंगे जो वो बता रहे हैं जी, और वो मतलब बता रहे हैं फेरी टेल वाली। मैं देखता हूँ मतलब वो फेरी टेल बता रहे हैं। नीचे आके सिगरेट कैसे पीता है, ऊपर जब सूली चढ़ाते थे तो हाथों पैरों में कील ठोकते थे, नीचे 8-8 इंच के जब कील ठुके होंगे। 2 मिनट हमें भी दें। हजरत नून साहब, हमने भी टिकट ली हुई है इस चीज में। जी ले लीजिए, आपकी बहस नहीं है। देखिए, एक उनका मुद्दा है। 1 मिनट बनी इसराइल, आप तो इधर ही हो ना यार, तेरा लेना देना विच है कोई नहीं हैगा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਲੀਬ ਜਾਂ
अफसानवी सलीब, तो उसमें किताब में बनी इसराइल साहब उन्होंने क्या साबित किया? अफसाना साबित किया ना सलीब। लेकिन एक बात मुझे उन्होंने ये नहीं, एक मिनट बात सुन, अफसाना उन्होंने बयान मलिक साहब बात करें आप लोग, एक मिनट मुकम्मल कर लें। अफसाने के खिलाफ अपनी दलाइल दे के बताया, जो मैं बयान कर रहा हूँ उनका अकीदा वो अफसाना है, जो अपना बयान करे वो अफसाना नहीं है। और मलक साहब अपना उस किताब में अपने अकीदे की कोई मसला ही नहीं है, उधर उनका अकीदा उनकी किताब से गलत साबित है, अपना अकीदे का तो मसला ही कोई नहीं है। और फिर एक चीज ये है मलक साहब कि आपके साथी जो है, बयान किया जाएगा। एक मिनट मैं बताता हूँ ना आपको, आपके एक बात ये है कि आपके साथी जो है ना वो देखें उनकी जो क्लियर स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट उसको रद्द करने के लिए क्या कर रहे हैं कि उनके अल्फाज में से एक नतीजा कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी सूरत भी उनके क्लियर जो वर्ड्स हैं ना उनको डिनाई नहीं कर पाएगा। एक बात, दूसरी बात ये है तलत मलिक साहब, उनका आपको पहले भी शायद दोस्तों ने बताया हुआ है, उनका स्टाइल डिबेट करने का ये नहीं है कि वो उनके सामने मुसलमानों के अकायद प्रूव करते हैं, नहीं, बल्कि वो क्रिश्चियंस की इस बात की आप जो पूछ लें, वकास साहब बैठे हैं और ये नून साहब बैठे हैं, ये सब जानते हैं, बल्कि उनका स्टाइल डिबेट का ये है दिदार साहब का कि वो क्रिश्चियंस की कुतुब से क्रिश्चियंस के अकायद को गलत साबित करते हैं कि आपके अकीदे असल में ये है, किताबों में ये लिखे हुए हैं, तो आपका जो अकीदा है वो आपकी किताबों के मुताबिक अफसाना है। इस वीडियो में जो उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कुरान की आयत कोट की है। यही तला साहब मैंने आपसे सवाल करना है कि जब वो बात ही सारी क्रिश्चियन से कर रहे हैं तो कुरान की आयत क्यों कोट कर रहे हैं? भाई अगर की है तो अभी हम उनसे जाके पूछ तो नहीं सकते, तो आपने क्यों कोट की है? इसलिए कोट की है कि जो अकीदा वो बयान कर रहे हैं कि उनको सलीब पर मौत नहीं आई, जिंदा उतार लिया गया, और उसके साथ उन्होंने कुरान की आयत कोट की, तो इससे आपको अंदाजा नहीं होता वो अपना अफसाना नहीं बयान कर रहे बल्कि एक अकीदा बयान कर रहे। चले अभी वो वीडियोस आती हैं तो फिर उसके बाद हाँ, ये बात ठीक है, ये जब तक क्या पता इन्होंने कोई अल्फाज ऊपर नीचे किए हो जिससे और मतलब निकलते हैं, जब तक वीडियो ना आए। नहीं, बनी इसराइल किताब का नाम अगर होता कि सलीब और अफसानवी सलीब, फिर तो वो दोनों बातें इसमें उनको पेश करनी चाहिए थी ना। उन्होंने सिर्फ अफसाना या सलीब या अफसानवी सलीब, उन्होंने एक ही चीज साबित करनी थी और उन्होंने सलीबी अफसाना साबित किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मिनट म्यूट कर लो, मैं जरा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, म्यूट कर दो। देखिए प्लीज बोलिएगा नहीं, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं हजरत नून साहब के अकीदे की बात करता हूँ तो इनका अकीदा मैं साबित करने के लिए कि आपका अकीदा गलत है, क्या मैं कुरान का सहारा लूँगा? हरगिज़ नहीं। 100% ये बात बिल्कुल सीधी है तीर की तरह कि मैं कभी कुरान का सहारा नहीं लूँगा, चूँकि कुरान को ये मानते ही नहीं है। हमेशा मैं उनकी किताब से ही रेफरेंस लूँगा कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो जो है वो इसके अगेंस्ट है। अगर मैं किताब की बात भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये बात उस तरफ इशारा करती है कि वो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, इशारा करती है। अभी कोई हतमी बात नहीं हुई, हतमी राय कुछ भी नहीं हुई। अभी ट्रोसिकर साहब वो 3 वीडियोस लाएंगे, उन 3 वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा जाएगा। मैं मलक साहब के सामने उन 3 वीडियोस के वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश और उर्दू दोनों रखूँगा, मलक साहब को पढ़ के भी बताऊँगा, और उसके बाद अगर कोई फिर जो नतीजा सामने आएगा उस पर हम बात कर लेंगे। कि अभी फिलहाल है वो ये बात करनी, फिलहाल तो जो मौक़िफ़ वो वीडियोस ये 3 जगह पेश कर चुके हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ। बनी इसराइल के सामने भी और एक और अहमदी लड़का था उसके सामने। देखिए हमारे अंदर ये नहीं है साहब, वो आप कर लें, लेकिन देखें एक जब क्लियर स्टेटमेंट किसी बंदे की आ जाए ना, उसके बाद उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को जोड़ के उनमें से एक रिजल्ट निकालना, भाई सुनने ये उसको डिनाई नहीं कर पाएगा। चेक कर साहब ने की है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं कि उधर ही उन्होंने कुरान की आयत भी कोट की है। अफसाने के साथ कुरान की आयत कोट होगी? नहीं, हरगिज़ कुरान की आयत तो उन्होंने अपने लिए कोट की है ना। कल भी उन्होंने एक बात बताई थी ना, माकर हुआ माकर अल्लाह, तो उसका भी वो जो चीज़ पीछे सब्जेक्ट है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है। हम मुसलमान हैं, डिबेट के दौरान हम आपसे गुफ्तगू करते हुए जब मिर्ज़ा साहब की कुतुब से अगर कोई मिर्ज़ा साहब की बात को गलत साबित करते हैं तो एंड पे कह दे जाल हक व ज़हक़ल बातिल, तो इसका क्या मतलब है कि हम इस आयत से मिर्ज़ा साहब का वो गलत साबित कर रहे हैं। तो कुरान को मानते हैं ना। देखें आप उनके खुद वकील बने हुए, आपने हर बात को अपने हक में लेने की कोशिश करनी है और उन्होंने अपने हक में।
जब हम लोग बैठे हैं तो हमने तो खुदा को हाजिर नाज़िर उसको उसके बाद हमने ईमानदारी से ठीक है, वो आप कर लें, कोई मसला नहीं, आप चेक कर लें। हाँ वो अच्छा वो वीडियो इधर YouTube पे अवेलेबल होगी वकास? हाँ वो लंबी है यार, 2-2.5 हम घंटे ये नहीं कह रहे कि ये बात ऐसे, हम ये आपको ये बात बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि इस तरफ इशारा जाता है। ठीक है मलक साहब, आप देख लें, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला चेक कर लें आप। वो असल में वीडियो बहुत लंबी है। आमिर भाई आए हैं, मलक साहब उनको उठाएं। मलक साहब थोड़ी देर पहले इधर बात चल रही थी कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, पहले नबी नहीं है, पहले नबी है, पहले इंसान नहीं है। वो चले गए हैं यार, वो बंदा ही चला गया। बात तो सुन लेना। हाँ जी नीचे हैं। हाँ जी बोलो। नीचे है तो मैं तो नीचे में क्या करना आपने ने? अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं। वालेकुम सलाम। मेरे को टाइम थोड़ा है जी मैं गल करनी है। हाँ जी। थोड़ी जी गल लम्मी है, टाइम भी थोड़ा है तो गल भी लम्मी है, माल भी मुकाना है तो लाहौर भी जाना है। ठीक है जी, करें गुफ्तगू। मैंने वड्डी स्क्रीन पे कर दियो तल्ला साहब, मैंने वड्डी स्क्रीन पे कर दियो। जी जी क्यों नहीं करते तल्ला साहब को छोटा कर रहे हैं आप, तल्ला साहब के फहम को। है ते जरा आई छोटे हो तो साने चेक चेक के बड़ा कीता तो इन अमेज ही हरकत है कि इन्होंने छोटा कर दिया। लेकिन एक मैं ना सबूत वहाना चाहना, मीर साहब ने वीडियो एक बनाई सी, उस वीडियो ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹਕੀਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਕਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। कहते हैं इसमें अहमद दीदार साहब का अकीदा कौन सा है? ईसाइयत के रद्द पर गुफ्तगू करते हुए हम बाइबल के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि मसीह गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, मसलूब हुए और कब्र में दफनाए गए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हमारा अकीदा है। ऐदियां दर्जना मिसालां मैं दे सकना वा कि जदों कोई मुनाजर ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1912 ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਸਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਦਈ ਇਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਦੋ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਜੀਬ ਦਾਵਤ ਅੱਦਾ ਇਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਇਲਹਾਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਇਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਕਤਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਲੱਭ ਜੇ ਜਾਂ ਜ਼ੂ ਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੱਤਾ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਹੈ وہ ثابت نہیں ہو رہا تو انہوں نے 600 پھر بھی دینا ہی پینا ہے۔ عامر صاحب میں دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی پرسنالٹی میں تضاد آ رہا ہے، جس کی دلیل دونوں سائیڈ میں جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی میری رائے اسی کی طرف ہے۔ وہ اگر ان کی دلیل ان کی اسٹیٹمنٹ کے بھی اگینسٹ میں آ رہی ہوگی، وہ جو 3 ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں نا، تو جو دلیل ان کی بھاری ہوگی، وہ چاہے انہوں نے پہلے بات کی ہے بعد میں بات کی ہے ڈزنٹ میٹر، لیکن جو دلیل ان کی بھاری ہوگی، دیکھیں حق سچ کا جو بھی ہوگی رائے میں وہ دے دوں گا۔ ٹل ابھی تک جو ہے وہ بات یہی سامنے ہے، جو آپ نے دلیل رکھی ہے وہ بہت واضح ہے۔ یار میں تو ایک اور دلیل دے ہی نہ سڑن جاندے ہیں۔ رک جائیں تھوڑی سی رکھ بھی لیں نا، تو ایک مجھے ادھر رک جائیں، دے جائیے عامر بھائی۔ میرا دل دیکھیں آپ اتنا نہیں اصل میں عامر صاحب اتنا پھر واضح کر دیں گے تو ان کی وہ دلیلیں جو ہیں وہ بندے تو کنفیوز کیوں کرنا آمدے نے؟ مسئلہ نہیں ہے ہم سننا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف کون سے دلائل ہیں۔ اچھا بندے تو جس ویلے کنفیوز کرنے آمدے نے تو میں کرنا سکرول کرنا براڈ تے میں دیکھنا کہ وقاص صاحب دے مگر تے ہیپی صاحب دے مگر بندے لگے نے۔ ایک بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے آپ ہیں یا دوسرے ہیں وہ ہمیں کنفیوز نہیں کر سکتے۔ جو بات ہمیں وضاحت کے طور پہ نظر آئے گی ہم باقاعدہ طور پہ بتائیں گے کہ ہمیں کیوں یہ بات واضح لگی ہے، ہم اس کی دلیل رکھیں گے۔ بغیر دلیل کے کبھی بھی میں کوئی رائے نہیں قائم کرتا۔ اگر اس کی میرے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا، پروف ہوگا، تب ہی میں بات کروں گا کہ باقی ہی یہ بات جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر امید تے تواڈے تو ہے کہ تسی کوئی سیانی گل کرو دے کسے دے کہن تے تسی نہیں یہ بات آپ ایک بات ذہن سے نکال دیں نہ میرے اوپر۔ میں مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی اپنا، حالانکہ بہت ساری براڈس پہ ہم خود سامنے بیٹھے ہیں، میرے اپنے بھائی جو ہیں وہ میرے اگینسٹ، چونکہ کتاب کی بات ہوتی ہے، ہمارا مین مدعا ہوتا ہے کتاب، جو کتاب میں جو بات وضاحت ہو رہی ہوتی ہے وہ مجھے بھی انڈورس کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم غلط بات کر رہے ہو، جو کتاب کے اندر لکھا وہ ایسا نہیں لکھا، تم اس کو دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھنے کے بعد آؤ پھر ہمارے ساتھ دوبارہ اس پہ ڈسکشن کرو۔ تو ہمارا جو مین مدعا ہے وہ یہی ہے کہ جو بات حق سچ کی ہوگی، جو بات ان کی وضاحتاً ہوگی، جس بات پہ ان کے پوائنٹس بن رہے ہوں گے ہم وہی بات کریں گے۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں احمدی یا دوسرے مسلم جو ہیں وہ دبا سکتی ہیں یہ باتیں کر کے ادھر ادھر کی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دی اس کی۔ جی وہ 1500 یورو انہوں نے بھیج ہی دیتا سچی مچی، پھر تو رولا بن جانا نا۔ میں یار آپ دیکھیں یار میں نے خود پوسٹر لگائے ہوئے ہیں یار، مجھے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نہیں وہ کل کہہ رہا تھا، کل کہہ رہے تھے نا کہ 1500 دے دیو تو ساڑی رائے وہ سچی نہ لے کے چڑھ جانا تاڑے مگر ہے، دھیان رکھنا یہ زیادتی نہ کریں۔ یہ آج آپ کو پتہ ہے آج وہ عبداللہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے تو اس کو بولا کہ بھائی ابھی اگر آپ اپنا چیلنج یہ ایکسیپٹ کرتے ہو، یہ عبداللہ سے کہہ دیا، اس سے غلام علی سے میں نے کہا ابھی ₹1,00,000 میں آپ کو ابھی بھیجوں گا، یار مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی۔ وہ یہ نہ سوچ لین بھی کل انہوں نے آفر کی ہو سکتا لے ہی لین ساڑے کو، تو 1500 لے کے تاڑے مگر چڑھے ہون۔ بھگوان صاحب تسی کدھر رہندے ہو اج کل؟ غائب ہی ہو گئے ہو، بڑے دن ہو گئے نظر ہی نہیں آ رہے۔ دوزخ دے کنارے تے اسی بڑی کوشش کر رہے ہیں ذرا پیچھے کھینچو یار۔ بات دوزخ پہلا ساڈی گواہی دے کے مرے ہو، مرنا ہے تو گواہی دے کے مرے۔ نہیں بالکل عامر صاحب میں ایسا بھی نہیں کرتا کہ مطلب ایک بات جو ہے وہ صرف مجھے سمجھ آ رہی ہے میں اپنے ذہن سے لے رہا ہوں اور اس کو میں جا کے فیصلہ دے دیتا ہوں یا کوئی رائے دے دیتا ہوں۔ میں یہ جو باقی بھائی ہیں ان کے سامنے، چونکہ انہوں نے بھی یہ ساری گفتگو سنی ہوئی ہے جن کے آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، میں یہ ساری باتیں ان کے سامنے پہلے رکھوں گا۔ ہاں سب کو چاہیے کہ ایک موقع۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، جوزف صاحب کی میں نے بات سن کے جانا ہے، تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ میرے پاس وہ ویڈیو میں پلے کرنے لگا تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جو سوون تھیوری پیش کر رہے ہیں
ये सोन थ्योरी आपको पता है कि सबसे पहले 200 साल कबल वो कार्ल वेंतुरिनी ने पेश की थी, और उसके बाद हिंदुस्तान का एक शख्स था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, उसने पेश की थी, और अब आप ये सोन थ्योरी पेश कर रहे हैं। ये सवाल हुआ उनसे, ये मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तब 20 साल से ज़्यादा, वैसे तो टोटल 40 साल में तबलीग करके गए। कहते मुझे 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये बातें करते हुए, ये तबलीग करते हुए। मैंने आज तक अपनी ज़ुबान से कभी सोन थ्योरी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, ज़ुबान पर ये लफ्ज़ सोन थ्योरी आने नहीं दी। रही बात मिर्ज़ा गुलाम अहमद की या वेंतुरिनी, ना मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं कार्ल वेंतुरिनी की बात कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ, मैंने बाइबल से ये बातें पेश की हैं सिर्फ और सिर्फ, और मैंने अपने पास से कोई बात पेश नहीं की। मैंने यहाँ कहाँ पर गलती की है? बाइबल में ये बात नहीं लिखी हुई जो मैंने बातें बयान की हैं। अभी जो हज़रत नून साहब बातें कर रहे थे, ठीक है, इस मामले में शदीद इनका इख्तलाफ है। इनका ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर फोत हुए और उनकी मौत के साथ इनकी नजात का अकीदा जुड़ा हुआ है। ये बातें सारी मेरे ज़हन में है, लेकिन ये जो थ्योरी है या ये जो बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से ज़िंदा उतार लिया गया, वो फोत नहीं हुए, ये भी तो वहीं से निकली है ना बात। उसके लिए बहुत सारे शवाहिद हैं, उनको जुटलाया जा सकता है, उनकी तवील की जा सकती है, उनको मतलब गलत कहा जा सकता है, लेकिन ये बातें सारी वहीं पर से निकाली गई हैं। किसी ने अपने घर से घर कर ये थ्योरी नहीं पेश की। जी, किसी ने बात करनी तो काले, नहीं तो जोसेफ साहब की बात मुझे सुना दे तो मैं इजाजत दे। जी आमिर भाई, आपने एंड में जो बात की, मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि आपने जो बात की है ना कि जिस तरीके से ये बेहोशी का एक मफरूज़ा निकाला गया है बाइबल मुकद्दस से कि मसाया जो है वो सलीब के ऊपर बेहोश हुए, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस से ही निकला है वो मफरूज़ा। तो जिन्होंने बाइबल मुकद्दस से ये मफरूज़ा निकाला है, उनका मफरूज़ा तो ये कामयाब हुआ नहीं, और उन्होंने ये एक कहानी सुनाई है, ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है इसको, और ना ये कामयाब हो सका है, क्योंकि ये दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये करें तो कुरान से भी आप देख लें कि आपके सामने मरज़ली बैठे हुए, इन्होंने कैसे कैसे जिल्ली बरूजी नबूवतें निकाली हुई हैं। इन्होंने कुरान से, इन्होंने भी तो कुरान से निकाला है। भी तो ऐसे करते हैं ना, ईसाई भी तो ऐसे पुट्ठे सीधे अकीदे बनाए हुए ईसाइयों ने ना। अच्छा माजरत जी, मलिक साहब इधर ही बैठे हैं। अच्छा, जी मैं बैठा वो बनी इसराइल की ब्रॉड है, माजरत जी। अच्छा, ये मिर्जा साहब के मानने वालों ने भी वहीं से निकाले, तो ये ऐसी जो कोई मतलब लगी लिपटी बातें होती हैं वो निकाल सकता है किताब से, किसी भी किताब से निकाल सकता है। बाकी रही ये मीर लतीफ़ साहब की बात, तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ मीर लतीफ़ साहब के आप अनिल भाई से मुनाज़रे उठा के देख लें, वो तो हमारी स्ट्रीम्स के ऊपर भी रिकॉर्डेड हैं, वो जो प्योर डिस्कशन में होते थे, तो ये सारे वही दलाइल पेश कर रहे होते थे जो हकीम इमरान साकब और खावर रशीद भट्ट, ये मेरे ख्याल में हकीम इमरान साकब का तो मुझे पता है वो अहले हदीस हैं, खावर रशीद भट्ट साहब का मुझे नहीं पता। तो ये वहाँ से दलाइल इन्होंने ये मीर लतीफ़ साहब लेते थे, और बिल्कुल वही डिट्टो, वही जो पूरी कापी इन्होंने लिखी होती थी ना हकीम इमरान साकब की, वहाँ से लेके तो वही ये पेश कर देते थे अनिल भाई को। तो मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, मैं वैसे बात करने आया था मीर लतीफ़ साहब की। बाकी जो आपने जो उस दिन वीडियो दिखाई है, अभी तक यही रहा है कि ये इनकी जो अहमद दीदार साहब हैं, ये नहीं मानते थे कि मसाया जो है वो सलीब के ऊपर चढ़े हैं या वो बेहोश हुए हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन अगर कहीं ये नज़र आ गई ना बात, तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा हमारे हक में जाएगी, क्योंकि जितने हम लोग खिलाफ है ना, जितना कोई आज पादरी एंटी इस्लाम काम कर रहा होगा, जितनी शदीद नफरत आपके दिलों में होगी, वही हिसाब हम लोगों के लिए अहमद दीदार साहब के बारे में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है कि अगर पास्टर सैमी सैमसन या एडम सीकर के बारे में जो लोग राय रखते हैं मुसलमान, बिल्कुल वही राय हमारी इसके बारे में। तो अगर इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ निकल के आ गई ना, कोई ये जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं, अगर ये निकाल के दे दें कि जी ये मानते थे कि मसीह यीशु सलीब के ऊपर चढ़े, बस इतना भी निकाल के दे देना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं तो बड़ी जल्दी हम तो वही कहेंगे, हाँ जी ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि अगर वो ये मानते थे तो। वो तो ठीक है, अभी तक ये बात नजर नहीं आ रही। वो तो ठीक है, लेकिन आपका इंक्लिनेशन देखने के बावजूद ये आपको जज कभी नहीं मानेंगे, ये इतने खौफज़दा हैं। आज दिन के वक्त मुझे नासिर भट्ट का फ़ोन आया था, कभी कभी फ़ोन आता नॉर्मल तो वो मैसेज ही करता रहता, तो वो कह रहा था कि हम तुम्हें सालस दें, मैंने कहा दो। कहता है एक कश्मीरी, तल्ला साहब थोड़ा यार कश्मीरी, एक जज कश्मीरी
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲੇ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ ਭੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਰਸ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਰਸ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ आगे ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, गल पहला करने लगे जज। मेरा ख्याल में शायद बनी इसराइल साहब जो है ना ये मुकर्रर होंगे ना जज, क्योंकि हमारा तो नाम आपने उनमें लिखा हुआ है ना कि जी अवाम आप सब जज, आप सारे लोग जज हैं। कहीं से हमसे पूछा तो भाई हमें तो जरा सा कोई नजर आएगी, कोई छोटा सा पॉइंट भी नजर आ गया उनका तो हमने कहना है हाँ जी वो ये बात कर रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं उनसे। हम हमारे तो वो सीधे सीधे हम उनके मुखालफ हैं, वो हमारे मुखालफ है अहमद दीदार साहब। आप सारे लोग जज हैं साहब। मैं हर बंदे को उसको भी जज मानूंगा जिसने मुसलमान होने के बावजूद मीर लतीफ साहब के मौक़िफ़ की हमायत की, मैं उसको भी जज मानूंगा। क्योंकि जज है ही वो जो बिला मफाद बगैर फ़ायदे के अपना तड़ा कुटियों बगैर एक बात करता है और वो ये समझता है कि ये हक है। यानी नॉर्मल तो जो मीर लतीफ़ साहब का हम अकीदा उसको मीर लतीफ़ साहब की बात करनी चाहिए, जैसा कि बहुत सारे कर भी रहे हैं लोग इनके अपने, और बहुत सारे मुसलमानों को मेरी हमायत करनी चाहिए। तो ये होता है तड़ा कुटना। जो अपने तड़े के खिलाफ बात करेगा वो जज है। 15 बंदे हमने जज के तौर पर पेश किए हैं, तो इन्होंने अभी तक एक भी नहीं पेश किया। इनका कोई हमायती नहीं है अल्लाह की इस धरती पे। बारह देखते हैं, मुझे इजाजत है जी। नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है। अब पता नहीं ये लोग क्या दलाइल लेके बैठे हैं वो अभी तक नहीं सुने। अभी तक तो यही बात नजर आ रही है कि वो इन चीजों को नहीं मानते थे। अगर वो मानते हैं कोई दलाइल हैं तो वो दिखाने चाहिए इनको, ये हमारे हक में भी जाते हैं। ये सर कुछ भी नहीं है। आमिर भाई मैं ये कह रहा था कि भाईजान मेरा बेशक आप नाम उसमें से निकाल दें यार, मैं तो इन मामलात में आता ही नहीं। ये नहीं मरब्बा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਵਾਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਲਿਖੀ। चलो नहीं वो तो जो मैंने आपकी बात सुनी थी मैंने उस पर अपनी राय दे दी थी, लेकिन ये कि मेरी बात कोई वैल्यू नहीं रखती ना, मेरी बात जमात अहमदिया के लोग कोई उसको वैल्यू देंगे ना आपकी पार्टी कोई वैल्यू देगी, तो फायदा नहीं उसका। वैल्यू देने इन्होंने कितों दे दी है सर? हमारे लिए तो वैल्यू है ना। जिनके खिलाफ कल आप मेरे खिलाफ देंगे मसला नहीं है। आमिर साहब ये ऐसे ही बस बोल रहे हैं, तो जब मैं ये वीडियो सुन लूंगा तो मैं सबसे पहले तो अपने विकास का ठीक है, विकास सही बंदा है। और नहीं यार चुप हो जरा। हाँ जी हाँ, मतलब आपस में जो है इसकी पहले डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जितनी भी भेजेंगे मैं सबसे पहले जो है अपने हमारा ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। अच्छा वो क्या बना, वो जो कल बंदा कह रहा था मैं भट्ट साहब से बात करूंगा, भट्ट साहब जाके मीर साहब से बात करेंगे, तो फिर वो आके आपको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने उनको मैसेज भी किए हैं, अभी दोबारा भी मैंने शाम में दोबारा मैसेज किए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। भाई यही इन्हों को पूछा और जेड़ा भी बंदा आके कहता ना मीर साहब से बात करके आपको बताते हैं, वो बाद चो बंदा ही गायब हो जाता। मीर की जाने इन्होंने बट्टा छट्टा उन्हें को नहीं आना इधर। वाह भाई वाह, ये हालात बने पड़े हैं। जोसेफ साहब कहते हैं मैंने देखने दलाइल उनके। भाई साहब दलाइल मीर साहब ने पहले बंदा देख लो, बंदा नजर आ जाता। नहीं आमिर साहब मैं खुद जरा थोड़ा सा हूँ मतलब अट्रैक्टिव हूँ उस तरफ के, मैं भी उनके दलाइल देखूँ कि उनके पास कौन से ऐसे दलाइल हैं। देखिए दावा जब भी कोई बंदा पेश करता है कुछ ना कुछ तो उसके पास होता है। ये नहीं हो कि जीरो बिल्कुल हो और वो उठा के दावा कर दे, कुछ ना कुछ तो होता है उसके पास। अब वो जो कुछ ना कुछ है वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उनके पास वकास भाईजान उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उन तहरीरों के अपने निकाले हुए मानी। डॉक्टर अहमद दीदात की तहरीरों से इन्होंने खुद साख्ता मानी जो निकाले हुए हैं ना कि इस तहरीर का ये मानी बनता है, वो तो लेंगे ही नहीं ना अमित साहब। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी का मतलब ले लें, आप तावील करें और हम सुनते रहें और उस पर अपनी राय दे दें। ये उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वही है सिर्फ उनकी तहरीरों को खुद साख्तामानी पहनाया गया। देखिए वो आपने जैसे वीडियो पेश की है उसमें आपने अपनी कोई बात नहीं पेश की। बिल्कुल नहीं। आपने एक वीडियो सुनवा दी है उसमें अहमद दीदात की बात है, वो डायरेक्टली हर बंदे सुनने वाले को पहुंच रही है। हाँ जी। इसी तरह जो तहरीर भी होगी उसमें डायरेक्टली अहमद दीदात साहब की बात होगी और वो डायरेक्टली हम तक पहुंचेगी। हम उसमें किसी की तावील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, ये है वो बात।
ये हाशिया राई की मैंने कोई हाशिया चढ़ाया उस वीडियो के ऊपर? कोई हाशिया नहीं आपने चढ़ाया। इनको भी जरूरत नहीं है कि ये कोई तहरीर पेश करें तो उसके ऊपर अपनी हाशिया राई करें कि इस तहरीर का ये मानी मफहूम है, वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनांचे करके ना मतलब सीधा निकालें। वो तहरीर साफ होनी चाहिए जिस तरह वो वीडियो साफ है। देखें, इन्होंने अभी जो 3 वीडियोस भेजनी है उनमें जो काम की बात होगी ना, जो इस टॉपिक के रिलेटेड होगी, मैं उसको बाकायदा तौर पे नोट डाउन करूंगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। फिर वो तीनों वीडियोस को मैं एज अ कंपैरिजन जो आपने दलील दी है उसकी जो मैंने रिटर्न लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट में रख के उसको परखूंगा। हाँ जी, 3 वीडियो जोड़ के उसमें से आधे मिनट की एक स्टेटमेंट निकालनी है जी। पहले विकास दोवे पार्टियां को पूछ ले तेन मान लैणगे तेरी गल या नहीं? यार मैं नहीं मनवाना, अपने आप को नहीं मनवाना, मैंने तो तलत साहब से बात करनी है, मैंने तो तलत साहब के सामने वो सारी बातें रखनी है। अब तलत साहब चूंकि वो इंग्लिश में सारी वीडियोज हैं, तलत साहब के लिए मुश्किल है, तो हमने एक मतलब अपनी तरफ से एक राय देनी है कि वाकई ही ये बात जो है वो हकीकत है, ये झूठ में मबनी है। बड़ा मसला ही नहीं है ना जनाब कि भगवान साहब असल बात यह है कि जब भी कोई जज हो या वैसे पब्लिक में से कोई फैसला हो, किसी के हक में फैसला देता है ना, तो उसको तो अच्छा लगता ही लगता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड है, आप लोग हमें जानते भी हैं। अगर ये वकास साहब दयानतदारी अपनी तरफ से दयानतदारी से अपनी राय दें और भले वो हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना चली जाए, हम फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई उसने हमारे लिए इतनी एफर्ट लगाई है, कुछ टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये इतनी हमें बदयांती नहीं है कि हम कोई कालों की तरह बाद में जज को गालियाँ निकालता फिर जज चढ़े मेरे अम्ब थे तो ग्रंटर चढ़े मेरे अम्ब थे, इस तरह हमारा बचकाना हरकतें नहीं है। हमने इनको एक जिम्मेदारी दी है, वो इतने दिनों से लगे हुए हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। एट दी एंड अगर ऐसा उनके माइंड में ये भी आ जाती है कि नहीं ये बात अमन नज़ीर भाई के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाती है और वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई राय देती है, फिर भी हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी वेलकम, इनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे हम। तो इनकी बहरहाल वैल्यू है क्यों नहीं? मैं कहता हूँ कि जैसे आपने 1 kg जो है हमें उस बात में से 1 किलो वज़न दे दी है, अब उस वज़न के अगेंस्ट में दूसरी तरफ से हमारे पास अगर 500 किलो या 900 किलो भी वज़न आता है तो हम उसको दोनों को एक तकड़ी पे एक तराजू पे रख के देखेंगे। जब उसको रखेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कौन सी जो बात है वो डोमिनेंट है, किसका वज़न ज़्यादा है। जो बात का वज़न ज़्यादा होगा उस बात के साथ हम अपनी राय बता देंगे कि ये राय आ रही है। सिंपल सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि उस वीडियो से बढ़कर जिस वीडियो में इतनी यानी मैंने सुनी हुई आमिर साहब, मैंने वो जो इन्होंने तीनों वीडियोस बोली हुई है ना, मैंने बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे वो तीनों वीडियोस ऑलरेडी सुनी हुई हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ उसमें वो पॉइंट कौन सा हाईलाइट करते हैं, उसमें से भी खुद साख्ता पॉइंट निकालेंगे। मसला नहीं है, वो खुद साख्ता बताएंगे। मैं तो ये सुनूंगा ना कि वो अहमद इदाद साहब वो किस जुमरे में ये बात उनको बता रहे हैं। अच्छा विकास, ये जो है वो सिर्फ उस मामले में तुम ये रोल अपना रहे हो या ये जो ज़िया रसूल साहब जो हैं उनकी जो डिबेट हुई कालूम के साथ उसके तो मिल गया था लाख रुपया भगवान साहब ले लिया यार, वो तो ले लिया भी मार छड़िया है, वो तो रोला भी हो गया। आमिर भाई आपने इन लोगों को मतलब ये जो बनी इसराइल भाई हैं इन लोगों को आपने जज मुकर्रर कर दिया है? सर हमने 15-16 जजों की लिस्ट बनाई हुई है, आप भी उसमें शामिल है। नहीं उनको तो किसी को नहीं मानना ना, मतलब ज्यादातर जो आपने बनाई है इनका ही चांस है बनी इसराइल का, क्योंकि अब तो तारिक चौहान साहब का तो नंबर वैसे ही उनको तो मेरी बात वैसे नहीं मानते, मेरी बात साहब को भी नहीं मानेंगे। इन लोगों का चांस है, इनको अगर वो मान ले तो आप लोगों की तरफ से नहीं हो चुके हैं। नहीं खाम खा आप एनर्जी लगा रहे हैं। मीर साहब ने अलान कहा है मैंने किसी को जज नहीं मानना। मीर साहब किसी को जज मान नहीं सकते, ना इनको ना आपको ना किसी और को। मीर साहब के ऊपर सिर्फ इन जजेस से जो पब्लिक जज है उसका एक प्रेशर हम बना रहे हैं कि जब सारे उनके अपने भी बंदे कहेंगे कि देखें सारी पब्लिक कह रही है आपके खिलाफ, तो या तो वो किसी को जज मुंतखब करें जिसका इम्कान बहुत कम है, वो कहते हैं कि मैंने जज किसी को नहीं मानना। तो दूसरी सूरत यही है कि उनके बंदे ये देखें कि सारी पब्लिक और खुद उनके बंदे भी कन्विंस हो जाएं। मतलब जिस दिन ये वीडियो पेश की है ये मुबशर रजा और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, स्टे रियल साहब, वो सारे काहे लोग, उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल साफ है। हम इंतजार करते हैं कि मीर साहब को इसके बरक्स इतना हम और स्टेटमेंट कोई डॉक्टर अहमद इदाद का ले आए तो फिर ठीक है, वरना आपका मौक़िफ़ तो साबित हो गया कि उनका दोबारा देखते हैं ना। फिर मीर लतीफ़ साहब खलीफा साहब को बना लें या उनसे कोई फतवा लेके आ जाएं, आखिरी हाल तो यही है फिर।
उन्हीं को नहीं, बना वो लें कहते हैं मैंने जज किसी को नहीं माना, जज वो किसी को नहीं माना। खलीफा साहब को बना लें जज, मिर्जा मसरूर साहब को बना लें जज। अच्छा वकास साहब आप मेरी बात सुने, ये 3 वीडियोस जो आपने देखनी है ना, जब ये देख चुकी हैं आप, तो वो अपना फाइनल डिसीजन लेने से, माइंड बनाने से पहले मुझे बताइएगा। मैं भी आपको एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें डॉक्टर अहमद दिदात साहब ये जो नया वर्ड उन्होंने बनाया क्रूसिफिक्शन CTION वाला, इसके वो मीनिंग्स बता रहे हैं, मीनिंग्स। देखें डेनिंग साहब, जब मैं देखें हतमी फैसला तो मैं तब तक नहीं दे सकता जब तक मीर लतीफ़ साहब से मेरी गुफ्तगू नहीं होती। असल चीज ये है, हाँ मीर लतीफ़, बाकी अभी ट्रुथ सीकर साहब मुझे मेरे सामने जो मर्जी सबूत ले आए, आमिर साहब ले आए, आप ले आए, या उनके और कोई दूसरे बंदे ले आए, जिस दिन मेरी मीर लतीफ़ साहब से बात होगी या उनकी ब्रॉड पे मैं जाऊंगा या वो इधर आ जाएंगे, जब उनसे मेरी गुफ्तगू होगी और मैं उनसे ये सवाल लाजिम रखूंगा कि इसके बाद भी आपके पास कोई दलाइल मौजूद है या नहीं है, ये मुझे ज़रा क्लियर कट बता दें। अगर वो बोलेंगे कि मेरे पास इसके बाद अब और कोई दलाइल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से एक हतमी दलाइल पहुंच चुके हैं। फिर उन हतमी दलाइल के बाद मैं आपसे भी पूछूंगा, बाकायदा तौर पे तलत साहब की ब्रॉड पे ही होगा, ये तलत साहब भी मौजूद होंगे, और मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपके पास इसके बाद कोई हतमी दलाइल है। फिर हमारे पास और भी दलाइल हैं, मैंने सिर्फ एक सारे दलाइल को काउंटर ये हतमी ही है, तो लेकिन इसके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दलील ये हतमी है, इससे बढ़ के क्या हतमी होनी है? हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके अलावा भी हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, उनके वीडियो बयानात ऐसे मौजूद हैं जो इनकी किसी खुद साख्ता मानी को, तफसीर को इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। आप इनकी बात नहीं है ना आमिर साहब, आप एक बात को समझें, आप बार बार कह रहे हैं कि खुद साख्ता, देखिए खुद साख्ता उनकी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो उन्होंने, अब वो देखिए, वो मुझे कायल नहीं कर सकते किसी भी तरह से। मैं जो अहमद दिदात साहब की या तहरीर है या उनकी वीडियो है, मैं उससे अपने आप को खुद देखूंगा कि मैं इससे कितना कायल हो रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी एक सबूत आ चुका है। क्या उस सबूत के बरअक्स जा रहा है या उससे नीचे नीचे बात हो रही है? अगर तो नीचे नीचे बात हो रही होगी तो वो निगलेक्ट हो जाएगी, उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। अगर वो उसके रिलेटेड भी आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इनकी बात में भी वजन है बहुत ज़्यादा, तो वो काबिल गौर है, काबिल बहस है। बाकायदा तौर पे इधर बैठेंगे, बाकी सारे भाई भी बैठेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट मुझे अगर कोई मिलेगा ऐसा पॉइंट जो कि रेस करने वाला होगा, अगर कोई नहीं होगा तो मेरी सिंपल सी आगे यही बात होगी कि आमिर साहब जो कि ना उन्हें मौत दी गई जिल्लत अमेज, और ना उन्हें जो है वो सलीब का नंगापन उससे भी महफूज रखा। सिंपल सी बात। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई खुद साख्ता मानी आप नहीं सुनेंगे, तो आपको क्या तवक्को है कि डॉक्टर अहमद दिदात ने उस बात के खिलाफ, खुद ही अपनी ही बात के खिलाफ कोई इस तरह की बात साफ कही होगी कि यानी एक ही मुंह से कह दिया कि जो नबूवत का दावा करेगा वो मुसलमान कज़ाब का भाई होगा, और दूसरे दिन कह दिया कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में रसूल भेजा? इस तरह तो नहीं ना हो सकता भाई जान। नहीं देखिए, हो नहीं सकता ना ऐसा, वो तो सिंपल सी बात है। मैंने कहा है कि मैं दोनों बातों को रखूंगा, दोनों बातों को सिर्फ अपने सामने नहीं, हमारे पास 8-10 बंदे जो ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो तहकीक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, न्यूट्रल बंदे हैं। मैं अपने सामने सिर्फ नहीं रखूंगा कि मैं एक खुद बात समझूं। हो सकता है उनका दिमाग मेरे से ज़्यादा चल रहा हो, ज़्यादा तेज हो, उनके पास फीलिंग मेरे से ज़्यादा हो। अच्छी बात, वो बहुत अच्छा एक गल विकास है जेड़ा ना लॉ दी दुनिया विच एक्स पार्टी फैसला एक टर्म है, एक्स पार्टी ते जदों पार्टी दूजी मौजूद नहीं ना होंदी, तरीखां त्रै को पै जांदियां ने, हर किस्म दा जेड़ा नोटिस चला जांदा है, समझ टुर जांदा है, तो पार्टी फिर भी नहीं आंदी। फिर जज मजबूर हो के ना दूसरी पार्टी दे हक च फैसला, दूसरी पार्टी दे हक च फैसला दे दिंदा है कि भाईजान दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही। ये मैंने एक्स पार्टी फैसले दा भी जेड़ा वो भी कोई जेड़ा ना वो रूल एंड रेगुलेशन बात ऑलरेडी मैंने ऑन एयर की थी। ये बात कल भी जब मैं बैठा हुआ था ब्रॉड पे, मैंने इनको बोला है कि मैं अभी जो है जो भी मीर साहब को अप्रोच कर सकता है उनको बोलें कि सिर्फ मेरे तक इतना पैगाम पहुंचा दें। अगर मुझे किसी भी ब्रॉड पे आप बुलाते हैं, मैं आता हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अगर इसके बावजूद भी आप अप्रोच नहीं करते तो मुझे ये हक हासिल है कि जो दलील अभी तक मेरे तक पहुंच चुकी है या कोई मीर साहब के मतलब कि उनके ज़ुमरे में अगर वो पेश करना चाहता है कर दे। फिर उसके बाद मेरे पास ये हक हासिल है कि मैं इंडिविजुअल तौर पे एक अपनी राय दे सकूं कि ये राय किस हक में जा रही है, चूँकि दूसरी पार्टी तो बा ही नहीं रही।
अब उनके बंदों को भी जो है मैं खुद मैसेज कर रहा हूँ कि भाईजान आप कुछ ना कुछ तो उनके साथ बातचीत करवा दें, कोई बातचीत करवा दें, कोई उनको बोले अपने दलाइल रख दें। चूँकि उनकी मैंने एक वीडियो जो अपलोड हुई थी वो मैंने देखी है, उसमें तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिस पर कोई गौर किया जाए या ज़ेर बहस लाया जाए, तो उसको तो मैंने वैसे निगलेक्ट कर दिया। अब अगर कोई उनकी दूसरी वीडियो आती है मैं ज़रूर वो भी देखूँगा, क्योंकि उन्होंने बताया था मोहम्मद अली भट्ट साहब ने कि उनकी कोई दूसरी वीडियो भी है जो अभी उन्होंने बना ली है लेकिन अपलोड नहीं की। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही अपलोड करेंगे वो मेरे तक पहुँच जाएगी। जब वो पहुँचेगी, और मैंने वो नियो पाजी को भी सेंड की है और मैंने उनको भी बोला कि आप भी ज़रा इसको देखें, अगर आपको कोई इसमें पॉइंट नज़र आते तो आप बताएं मुझे। तो अगर कोई बात ऐसी नज़र आएगी तो ज़रूर उसको उस पर बहस कर लेंगे। सराई भाई एक मिनट मिल सकता? जी 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 बोले बोले। बनी सराई भाई पाकिस्तान मैं रहना पाया, उत्थे हर जुम्मे वाले दिन ਜਦੋਂ भी गुफ्तगू ਹੁੰਦੀ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते उत्थे यही दसदे पए आ कि उन्हां दी जगह उत्थों उन्हां नूं कमरे 'च रोशनदान थड़ी या छत फाड़ के अल्लाह ताला आसमान ते लै गया ते उन्हां दी जगह उन्हां दी शक्ल दा बंदा सूली चढ़ा दिता गया। ते इत्थे तजाद बहुत ज़्यादा ये करदे पे, सिर्फ ये क्यों होण दिया? ये पूरे पाकिस्तान च हर मस्जिद च जिस BCO मौलवियां नूं पुछ लो वो यही गल दसदे है कि उन्हां दी जगह कोई दूसरे बंदे नूं तशबीह दे दित्ती गई, उन्हां नूं सूली चढ़ा दिता गया, ठीक है। तो उत्थों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं छत पाड़ के या रोशन दा, ये कोई समझो बाहर है गल। जी जी ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स का मेरे पास बाकायदा तौर पे वीडियोस में ये मैंने हाँ जी बिल्कुल यही मैं गल करना चाहता साहब आप ये समझ रहे हैं। देखिए मैं ऐसे नहीं मैं बात करता, मैंने बाकायदा तौर पे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं मेन स्ट्रीम के जो उलमा है ना उनकी इस बारे में वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हज़रत ईसा के बारे में, उनके रफ़ा होने के बारे में और उनके कत्ल और सलीब ना होने के बारे में उनका अकीदा क्या है मुकम्मल। तो वो मेरे पास रखी हुई है। जिस दिन हतमी राय आएगी उस दिन ये सारे सबूत जो हैं वो सामने पेश किए जाएंगे, लोगों के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद जो है वो कोई हतमी राय कायम होगी इंशाअल्लाह। बनी इसराइल भाई जो भी हक बात होएगी वो दसो, सानू किसी नाल कोई नहीं है। असी अलहमदुलिल्लाह तुहाडीआं गल्लां बहुत सुनियां, गुफ्तगू तुसीं अच्छी माशाअल्लाह करदे हो। जो भी हक की बात होएगी असी उहदे नाल होवांगे। ते बहरहाल यह है कि पाकिस्तान च मैं रहिंदा पिया, हर मस्जिद च हर मौलवी को जिन्हों मर्जी हुण पुछ लो वो कहेगा ए दो बंदे इत्थे आके नहीं मानते पे। ये मैनूं समझ अपने अकीदे ते क्यों फरार इख्तियार करते हैं, सिर्फ इन्नी मैनूं समझ नहीं आती। खान साहब एक बात समझ लें, ना डॉक्टर डेरिंग साहब मेन स्ट्रीम में हैं, ना आमिर नज़ीर साहब जो हैं वो मेन स्ट्रीम में हैं। इनके भी आगे जो कुछ उलमा है जो मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं और मेरे पास उनकी बाकायदा तौर पे, जिससे ये भी डिनाई नहीं कर सकते, मेरे पास उनकी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। आप बेफिक्र रहें इस चीज़ से कि मैं एक साइड की बात करके दूसरी साइड को छोड़ दूंगा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जो इंशाल्लाह बिल्कुल बाकायदा तौर पे उसकी तहकीक आपको नज़र आएगी कि वाकई ही इस पे वर्कआउट हुआ है। वर्कआउट होने के बाद इन सारी दलीलों को परखने के बाद एक जो है वो नतीजा अखज़ किया जा रहा है। 10-15 मिनट पहला ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ नहीं आती कि चक्कर की गेम की चलता है। 1 मिनट जी 1 मिनट, मैंने ये कब अल्फाज कहे, मेरे ये अल्फाज ही नहीं है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब ये गल ਕੀਤੀ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ गलत बात मेरी तरफ मंसूब ना करें। ये सामने बैठे वकार साहब, मैंने कहा है इनको कि ये गलत समझ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ मैंने अपनी बात रखी है, इसका ये मतलब है गल नहीं है। मैंने इनको तो कहा ही नहीं है, मैंने कहा कि सीकर साहब जो बता रहे हैं वो बात नहीं, ये बात है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये गलत समझ रहे हैं। वकास साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी थी कि भाई मेरे ये फाइनल मैच है। ये वो तो कह रहे थे कि अभी मैं देखूंगा, तो मैं कैसे कह सकता हूं आपने गलत। क्यों डॉक्टर साहब तुम इदा करते हो? मैं तो यार मेरे आप ये अल्फाज दिखा दें कि मैंने कहा हो कि आप गलत समझे। चले मसला इस बात पे, अभी इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं गलत चीज ना मंसूब करें, मेरे मुंह पे गलत चीज मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। तलत साहब मौजूद हैं आप इधर? तलत साहब, मलिक तलत साहब सो गए नहीं? सो गए?
ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ? ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਦਾ ਇੱਥੇ? ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ मलक साहब ने उठान दे। हाँ मैं उठाता हूँ, एक मिनट। तल्ला साहब जवाद साहब ऐसे बैठे होंगे नहीं रोज जड़ा है ना इजाजत दे दें तल्ला साहब को सोने की इजाजत। ਉਹਨੇ ਜੀ ਬਾਗਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗਬਾਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨਾ ਖਰਾਟੇ ਡੇਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी हो सकता पैगाम तेरा पहुंचा दें उन्होंने कि तू तलाश कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब आप सलीम साहब के साथ बैठते हैं ब्रॉड पे? मैं हाँ जी कई दफ़ा मौका मिलता है बैठने का। तो जवाद साहब मेरा एक पैगाम उन्हें पहुंचा दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि एक जो है बंदा आपकी इस मामले में जो पूरा मामला भी चल रहा है, ये हज़रत अहमद दिदा शेख अहमद दिदा साहब का और जो मसीह मौत का जो मामला चल रहा है वो सिलसिले में मैं उनके दलाइल ज़रा ना सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उनके पास कौन से दलाइल हैं। ठीक है तो मैं आपका पैगाम अली भट्ट साहब को भी मैसेज किया था तो उनका अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। उसके बाद मुबशर रज़ा साहब हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई पैगाम दिया नहीं है हमें कि क्या उन्होंने मीर साहब से बात की है या उनको कोई फीडबैक आया है। तो आपसे भी यही इल्तमास है कि आप भी ज़रा उन तक पहुँचाएँ। मैं ठीक है पहुँचा दूँगा आपकी बात। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दें। बोलो। ये पक्के बंदे हैं, इनसे बात करें। और भाईजान जब मैं कल सो रहा था ब्रॉड पे तो मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मुझे बताया गया कि आमिर नज़ीर साहब की तबलीग को दुनिया के 256 मुल्कों तक फैला दिया जाएगा। और अभी आप देख लें दुनिया के 256 मुल्कों में आमिर नज़ीर साहब की तबलीग फैल चुकी है। अल्लाह का नाम लो, खलीफा ना चुन लेना उन्होंने। नहीं मैं जो बात हुई है मैं तो वही आमिर नज़ीर साहब भी दावा करूँ ने पता नहीं उन मैं तो जो देखा मैं तो अंदाज देता है। और दूसरी गल ये कि 2 दिन पहले भी मैं सो गया सी और मेरे खराटे भी आ रहे सन और मैं उस टाइम ख्वाब देखा तो ख्वाब मैनू दिखाया गया है कि आमिर नज़ीर साहब का जोड़ा मकाम और मरतबा है वो जमात अहमदिया के 5 खलीफियां तो ज्यादा है। वाह वाह वाह। ये मलक साहब तुसी सियाणे मेरे दा मतलब है मलक साहब जी मैं क्या आमिर साहब फिर जेड़ा दावा ठोकू ने मतलब ख्वाब तो यही थी कि उन्होंने मकाम और मरतबा उस टाइम कोई ना वो मिर्जा साहब ही जेड़ा ना वो ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦਾ ਰੋਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ ਪੋਲਾ ਜਾ ਆਖੋ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਪਵੋ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜੇ ਉੱਠ ਪਵੋ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰੋਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਭਾਈ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ।
हाँ बड़ी दलील है, बड़ी दलील है। वो क्या बात, मेरी तरफों जनाब है सारी फिर अबू जहल ने। अच्छा जी चलो बहरहाल मैं कोई बहस नहीं कर रहा जे इलम दी दलील है एक बंदे दा नाम अबू जहल होवे दा ते मेरी तरफों फिर सारे जेड़े टिकटॉकां दे डिबेटां कर रहे ने ये सारे ही अबू जहल। हर बंदे दी अपनी राय है जी, कुछ भी कह सकदा, कोई ऐसी गल नहीं।